चेम्बर ऑफ कॉमर्सના પ્રેસિડેન્ટ વિજયભાઈ મેવાલાને વિનંતી કરું કે આપ સૌનું શબ્દોથી સ્વાગત કરે. વિજયભાઈ મેવાલા. ગુડ ઇવનિંગ એવરીબડી. આજે આ સેમિનારમાં આપણે આ પ્રોગ્રામમાં શા માટે ભેગા થયા તે કોઈને બધાને ખબર જ છે કે આપણે શા માટે અહીં ભેગા થયા છીએ. અને જે બીના બની છે આપણા સુરતમાં તે બીજી વાર ના બને એવું આપણે બધા ઈચ્છતા હોઈએ, પરંતુ એને અટકાવવા માટે શું કરી શકાય અને એ બન્યા પછી આપણે શું કરવું જોઈએ એની એક વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે આજે આપણે એકત્રિત થયા છીએ. તો આ ફાયર સેફ્ટી એન્ડ રિસ્ક મિટિગન ફોર ધ ટ્રેડ 10th તો ફોર ટ્રેડ એના માટે અહીં મંચ પર ઉપસ્થિત આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન શ્રી પ્રકાશ હેડાઉ, ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા અને આપણા સભ્ય એવા શ્રી એલ કે ડુંગરાણી સાહેબ, ચેરમેન એલકેડી ઇન્ડિયા ગ્રુપ, રિટાયર્ડ ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ, ગુજરાત સ્ટેટ. અમારા ટ્રેઝરર શ્રી મુનાલભાઈ શુક્લ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, ચેમ્બરના ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી પરેશભાઈ લાઠિયા, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ સિક્યુરિટી કમિટીના કો ચેરમેન ચેતનભાઈ શેઠ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ સિક્યુરિટી કમિટીના સભ્ય ડૉક્ટર ચિંતનભાઈ પાઠક, તેમજ અહીં ઉપસ્થિત સર્વેને હું આ આજના કાર્યક્રમમાં આવકારું છું. ગત મહિને રિંગ રોડ સ્થિત જે શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફાયરની બીના 26 તારીખે બની, એ ફાયરની બીના કોઈક બી કારણોસર બની હોય, પરંતુ ત્યારે અમે પણ બીજે દિવસે ગયા હતા ત્યાં વિઝિટ માટે. ડુંગરાણી સાહેબ અને આ ફાયર ઓફિસર જે અહીં આવ્યા છે હેડાઉ સાહેબ, તે એમનો સમગ્ર સ્ટાફ પોતાની જાનના જોખમે ત્યાં કાર્ય કરી રહ્યો હતો. અને ત્યાં અમે પણ ડિક્લેરેશન કર્યું કે અમે એક હેલ્પ ડેસ્ક ચાલુ કરીએ છીએ, જેમાં ફ્રી ઓફ ચાર્જ દરેક જણને જે પણ કોઈ આ ઇન્સ્યોરન્સ બાબતમાં હોય કે સર્વે કરવાનું હોય ને એ બાબતમાં જે પણ કોઈ માહિતી જોઈતી હોય તો અમે અમારા SGCCI નાનપરા સ્થિત ઓફિસ ખાતે એક હેલ્પ ડેસ્ક ઊભું કરીને અમે એની માહિતી આપીશું. આ લોકો નિસ્વાર્થ સેવા જે કરી રહ્યા હતા અને પૂરી રાત 2 રાત જાગવાનું ખાધા પીધા વગર અને પોતાના જાનના જોખમે આટલી સેવા કરવાની એ એક દાદ માંગી લે છે. પહેલાં તો એ લોકોને આપણે એપ્રિશિએટ કરીને તાળી પાડવી જોઈએ. આ જે ઘટના બની એ ઘટનાથી જે વેપારીઓને અસર થઈ છે, પોતાને જેને નાણાકીય નુકસાન, જેને ભાડાની દુકાન હોય તેનો માલ જે સળગી ગયો તેનું નુકસાન, જેની પોતાની દુકાન હોય તેને એની પ્રોપર્ટીનું નુકસાન, એ જે થયું છે તે ઘણું મોટું છે. સાથે સાથે આ જે બીના બની તો તેમાં કેટલા લોકો ઇફેક્ટેડ થયા હોય, કેટલો વ્યાપાર ધંધાને અસર પડી હશે, કારણ કે જે લોકોએ માલ આપ્યો હોય આ વેપારીને એ લોકોના નાણાં અટકી ગયા હશે. આ વેપારીને જેણે માલ મોકલો છે તેની તો હવે સમસ્યા આવશે 20 તારીખે GST ભરવાનો આવશે ત્યારે, કારણ કે ઇનપુટ ક્રેડિટ લેવાની હોય. દરેક સમસ્યા હવે પછી જે સમસ્યાઓ ક્રિએટ થવાની છે, માટે જે અમે ડિક્લેરેશન કરેલું કે ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં અમે જે બધી માહિતી આપીશું, તો આજ સુધી એક પણ વેપારી અમારી પાસે આવ્યા નથી. તેવી રીતે ફોસ્ટાએ બી ડિક્લેર કર્યું છે. ફોસ્ટા પાસે કેટલા આવ્યા અમને ખબર નથી, પરંતુ વેપારીઓ પણ એક આ પૂરા રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં વેપારીઓનો બહુ મોટો હાથ હોય છે. આજે 70,000 દુકાન છે સુરતમાં, અને આવી બીના કોઈક વાર બનતી હોય છે. તેમાં વેપારીઓનો પણ એવો હાથ છે કે રાષ્ટ્રીય વિકાસ થાય, તો એના માટે એ લોકોએ પણ કાળજી શું રાખવી હોય, એ લોકોને અગાઉના વેપારીને કેવી રીતે સેટલ કરવાનો હોય, એના માટે બી કંઈક માહિતી મેળવવા આવવું જોઈએ. અમારા જેવી સંસ્થા, ચેમ્બર જેવી સંસ્થા જો આમાં યુનિવર્સિટી લેતી હોય ને ભાગ લેતી હોય, આજે આટલું બધી જાહેરાત સાહેબે પોતાના માધ્યમથી કરી, અમે અમારા માધ્યમથી આટલી બધી જાહેરાતો આપી, આટલા બધા SMSઓ મોકલ્યા, તે છતાં પણ આજે સંખ્યા ઓછી છે. આજે તમે ગમે એટલા પૈસા, આમાં કુદરતી આફત નથી કે જેથી કરીને સરકાર તમને રાહત આપે. ફ્લડ હોય, અર્થક્વેક હોય, એવી કોઈ કુદરતી આફત આવી ગઈ હોય તો સરકાર રાહત આપે, પરંતુ આ કોઈકની ભૂલથી કોઈક કારણોસર આગ લાગી હોય, એટલે આમાં કોઈકના ઇન્સ્યોરન્સ ના હોય, કોઈક GST ભરતા હોય, ના ભરતા હોય, એટલે કોઈક વેપારી સામે હજુ આવ્યા, અમારી પાસે તો નથી આવ્યા હજુ,
પોસ્ટામાં આવ્યા હોય એ લોકોના સેલમાં તો અમને ખબર નથી, અમારી પાસે હજુ આવ્યા નથી. માટે આ જ બધી વિસ્તૃત માહિતી અને જાણકારી આપવા માટે આજે આ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આમાં વિસ્તૃત માહિતી ડુંગરાણી સાહેબ બહુ અનુભવી છે અને આ સાહેબ પણ ફાયરમાંથી આવ્યા છે, ઘણા અનુભવી છે અને એમણે સ્પોટ પર કામ કરતા અમે જોયા છે તે દિવસે, એમને બી રાત દિવસ કામ કરતા અમે જોયા છે તે દિવસે. અને પૂરું એમની ટીમ, એમના એક ઓફિસરને પડી ગયા, ફ્રેક્ચર બી થયું છે એમને, અને પૂરી ટીમ એમને જે હિસાબે કાર્ય કર્યું છે એને આપણે દાદ આપીએ છીએ. અને અગાઉ આવી બીના તો બનવી જ નહીં જોઈએ, પરંતુ બન્યા પછી અને શા માટે બનવી નહીં જોઈએ, એની સેફટી માટે શું કરવું જોઈએ તે વિસ્તૃત જાણકારી આપણે ડુંગરાણી સાહેબ ને હરાવ સાહેબ આપશે. અને જે કોઈ આપના ક્વેશ્ચન આન્સર હોય તેના પણ વિસ્તૃત તમને સંતોષકારક જવાબ અહીંથી મળશે. માટે ફરીથી હું આ એક સેમિનારમાં આપ સર્વેને આવકારું છું. આભાર. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ, ઉપપ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, ટ્રેઝરર મૃણાલભાઈ શુક્લા અને આજના ચીફ ગેસ્ટ શ્રી પ્રકાશ એડાવ સાહેબ અને જે સ્પીકર છે LK ડુંગરાણી સાહેબ, એમના ફાધરનું તાજેતરમાં અવસાન થયું છે, પણ કમિટમેન્ટ હતું એ કમિટમેન્ટને પૂરું કરવા માટે સાહેબ આપણી સાથે હાજર છે. સાથે અમારી ફાયર સેફ્ટી કમિટીના ચિંતનભાઈ પાઠક, ચેતનભાઈ, મહેશભાઈ અને આપ સૌ મિત્રોનું ફરીવારનું સ્વાગત કરું છું. પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈને વિનંતી કરું કે આજના આપના ચીફ ગેસ્ટ શ્રી પ્રકાશ એડાવ સાહેબનું જે ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું બુકે અને મોમેન્ટથી સ્વાગત કરે. નિખિલભાઈ અને મુરલભાઈને વિનંતી કે સ્પીકર અને ફાયર સેફ્ટી કમિટીના ચેરમેન ડુંગરાણી સાહેબનું સ્વાગત કરે. Co-chairman. Thank you. મિત્રો, સુરત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ છે અને 80% કોમર્શિયલ જે ફાયર થાય છે એને પ્રિવેન્ટેબલ છે અને સુરત ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીનું હબ છે. તો આ પ્રોગ્રામ થકી ચેમ્બર એવી આશા રાખે છે કે જે અવેરનેસ આવે ને આપણે જે આ ફાયર સેફ્ટી સાહેબે કીધું કે એ કુદરતી નથી, માનવ સર્જિત કે કોઈ આપણી કંઈક ભૂલને કારણે એ દુર્ઘટના સર્જાતી હોય છે. તો આ જે શિવશક્તિમાં જે ઘટના બની એમાં એટલું સારું કે કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી. તો ચેમ્બર એના માટે કટિબદ્ધ છે કે આપણે આ ફાયર સેફ્ટી એક્સપર્ટ, રિસ્ક મિટિગેશન પ્રોફેશનલ અને બિઝનેસ ઓનર્સને સાથે મળીને આને કેમ અટકાવી શકાય એના માટે ચર્ચા કરીએ અને ભવિષ્યમાં આવી કોઈ ઘટના ન બને એના માટે આપણે કટિબદ્ધ થઈએ. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ સિક્યુરિટી કમિટીના મેમ્બર ડૉક્ટર ચિંતનભાઈ પાઠકને વિનંતી કરું કે આજના જે સ્પીકર છે શ્રી LK ડુંગરાણી સાહેબનો પરિચય આપે. First of all, it's my honor to introduce today our esteemed guest speaker, કાનજીભાઈ ડુંગરાણી સર. એમને લગભગ છેલ્લા હું 5-6 વર્ષથી ઓળખું છું અને જે રીતે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી કે ભાઈ હાઉ ઇઝ અ કમિટેડ, એટલે એમનું કમિટમેન્ટ આજે આપણને દેખાય છે. આટલા વ્યક્તિ વચ્ચે પણ આજે આપણને સારી રીતે જે ટૉપિક છે મુખ્ય આપણને સમજાવશે. સર ઓક્ટોબર 1978 થી 1984માં ગુજરાત સ્ટેટ મશીન ટૂલ કોર્પોરેશનના
ભાવનગર ખાતે સુપરવાઇઝર તરીકે એમણે જોબ કરી છે. 1984 ટુ જૂન 2014 સુધી ડિરેક્ટર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની અંદર એઝ અ નોટિફાઈડ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ફેક્ટરીની અંદર અસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ અને ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ તરીકે એમણે કામ કર્યું છે. સર્વડ એઝ અ રાજકોટ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ભરૂચ, નડિયાદ, આણંદ, વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ, ઓલમોસ્ટ ઓલ ગુજરાત આખું એમણે કવર કર્યું છે. જુલાઈ 2014થી he established organization LK Dungrani Associate, presently known as a LKD India, at Surat and branches at Ankleshwar, Baroda, Ahmedabad, Gandhinagar, Rajkot and Gandhidham, through which provides the industrial services related to the fire safety, industrial safety and trading activities in the safety applications. He is approved trainer under section 11A of the Factory Act 1948 by Director Industrial Safety and Health, Gujarat State, Ahmedabad. He is a competent person under section 29, 30, 31 of the Factory Act 1948 by Director Industrial Safety Act Health, Gujarat State, Ahmedabad, for pursuance vessel, chain pulling, block and lifting tackles. He is also a competent person for building a stability certificate. He is registered as a fire protection consultant on record by Surat Municipal Corporation, Surat. Presently, he is the chairman of the Quality Circle of the Forum of India, Surat Chapter, Surat. General Secretary of the Laghu Udyog Bharati, Surat. Provide as a fire safety training and industrial safety training in the more than 250 plus industries. He has carried out almost 150 safety audit, fire audits and other safety related activities. So sir, we welcome you from the Chamber of Commerce and really we are pleasure to introduce you. It is our privilege. Welcome sir. થેન્ક યુ ડૉક્ટર ચિંતનભાઈ. ચિંતનભાઈ વિશે પરિચય આપ્યો કે સાહેબને ગુજરાત સરકારમાં કામ કરવાનો બહોળો અનુભવ છે અને એઝ એ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે પણ ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીને સહાય કરી રહ્યા છે. તો સાહેબ, ફ્લોર ઇઝ યોર્સ. કેમેરામાં અવાજ આવશે. हिंदी इंग्लिश कौन सी भाषा पसंद करोगे? हिंदी. ओके. आज का हमारा टॉपिक है फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन फॉर द टेक्सटाइल मार्केट ओनली. कितने आदमी टेक्सटाइल मार्केट से हैं? ऑल आर फ्रॉम टेक्सटाइल? एक दो चार. बाकी इंश्योरेंस. अभी इंश्योरेंस कंस्ट्रक्शन सो व्हाट विल डिस्कस टुडे. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? तो मुझे फास्ट चलना पड़ेगा बिकॉज टाइम इज गिवन ओनली 30 मिनट्स. आई कैन टेक अप टू 40. रिसेंट फायर इंसिडेंट, रीजन बिहाइंड द इंसिडेंट, टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, rules and regulations related to the fire prevention and production, hazard identification, classification and case study. Objective of the fire: to prevent loss of life, permanent disability, loss of property, environmental damage and loss of the income of the worker by eliminating the cause of fire accident. एक ही शब्द में बात करूं तो to protect people, plant and environment. तीन पीको, people, plant and planet यानी कि environment, तीन पीको में बचाना है, तभी फायर सेफ्टी या सेफ्टी हम अचीव कर सकते हैं. इंजरी स्टैटिस्टिक्स इसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये भी मुझे लंबा चलना है इसीलिए. अच्छा, इसमें से मुझे मिडिल में टच करना है तो नहीं, नेक्स्ट नहीं आना. बच्चे थी प्ले करो. नहीं चाहिए क्योंकि पेन ड्राइव लीजिए. हाँ, ये वीडियो दिखाता है हमारे यहाँ अभी रिसेंटली
2030 यानी कि 23 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक का टोटल 8 इंसिडेंट हुआ है, इंक्लूडिंग दिस टेक्सटाइल मार्केट। इस 8 इंसिडेंट में टोटल 1000 करोड़ का लॉस हुआ है। और सिर्फ फैटलिटी की बात करते एक ही फैटलिटी हुई है, इज ए प्लस पॉइंट फॉर अस कि फैटलिटी सिर्फ एक ही हुई है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की लॉस की बात करें तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। एनवायरमेंट डैमेज के लिए तो एनवायरमेंट डिटेल देगा तो पता चलेगा, इसलिए एनवायरमेंट डिटेल की मेरे पास नहीं है। लेकिन 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी लॉस इज ए ह्यूज लॉस। अगर बात करें तो 1 इंसिडेंट हैपन इन करज, 1 हैपन इन सायन, 1 हैपन इन झगड़िया, 1 हैपन इन वायपी, 2 इंसिडेंट हैपन इन सूरत. So this is a huge loss. And every incident is having a fire is a major cause. मैं थोड़ा फास्ट चलाऊंगा तो 10 वीडियो है तो टाइम पहुंच जाएगा। मुझे प्ले करना है। ओके। जिन लोगों ने ये टेक्सटाइल मार्केट का फायर देखा उनको पता चला कि चलता होगा कि अगर इसको कंट्रोल करना तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सूरत का एक इंसिडेंट है। This is also a Surat incident. ये सारे इंसिडेंट हुआ, ये मैंने 7 इंसिडेंट के बारे में बताया। 10 दिन में सिर्फ 7 इंसिडेंट हुआ है। If I talk about the first 23rd February 2025, it was in the Siam. 4 गाले का फैक्ट्री था, 4 गाले का 4 मंजिला। It is a textile only. वहाँ पे रेपियर था, रेपियर था, वाटर जेट था, ट्विस्टिंग था, TFO था, वो सब मशीनें थी। फायर कहाँ से लगी होगी? इस पर्टिकुलर नहीं, स्टॉक से नहीं, इस पर्टिकुलर फायर का रीजन सिर्फ इतना था कि वहां पे ऊपर वेल्डिंग चालू किया था। जब वेल्डिंग करते हो, मैं इस इंसिडेंट के साथ आपको बताना भी जाऊंगा क्या उसमें ध्यान रखना था। कभी भी कहीं भी वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग से तो तड़का गिरता है। अब हम फ्लैट में जब ग्रिल लगाते हैं तब नीचे वाले सबको हम बोलने जाते हैं कि भाई कपड़ा ले लेना, कपड़ा लेना, हमारा वेल्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अपनी खुद की कंपनी है, तो क्यों ना हम नीचे से वो कपड़ा हटाया गया। ये कपड़ा नहीं हटा, इसके लिए फायर लगी। और ये फायर लगी थी 4 बजे के आसपास। 4 बजे जब फायर लगती है तो उसको कंट्रोल करने में कितना टाइम लगेगा? इट वॉज इन सायन। अगर सायन फायर की गाड़ी कहाँ से आएगी? तो CRC सेंटर से आएगी या अपना दूसरा सेंटर क्या नाम है उसको, अमरोली के पास वाला, वहां से 2 गाड़ी गई थी। उसकी पोजीशन अगर बताऊं तो दोनों ओर रोड था, अच्छी तरह से फायर फाइटिंग हो सकती थी। लेकिन फायर फाइटिंग करने के लिए जगह ही नहीं थी, तो फायर फाइटिंग कैसे करेंगे? दोनों और पूरा बॉक्स बना दिया गया था, तो वहां फायर फाइटिंग के लिए जगह ही नहीं थी, अंदर जाने के लिए स्कोप नहीं था। जैसे अभी टेक्सटाइल मार्केट की बात, ये सब बताएंगे, टेक्सटाइल मार्केट के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, सब बताएंगे। तो हमें जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तब से हमें ध्यान रखना है, ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि कभी न कभी हमारे यहाँ फायर लगेगी तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ पे पूरी विंडो होने के बाद सिर्फ 2 दरवाजा था, 2 दरवाजे के अंदर से फायर फाइटिंग करो तो उसको एंगल मिलना चाहिए। जब तक एंगल पूरा नहीं मिलेगा, पूरा ओपन नहीं मिलेगा, तब तक फायर फाइटिंग नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज, फायर फाइटिंग की जरूरत ही क्यों रहे? हमें प्रिवेंट करो फायर। हमारे ऐसा बिल्डिंग बनाओ तो फायर ही नहीं लगे। इलेक्ट्रिफिकेशन इस प्रकार से करो तो कहीं फायर होने का चांसेस ही नहीं रहे।
मैं आपको एक के बाद एक सारी एग्जांपल दिखाऊंगा, पर्टिकुलर मार्केट आज नहीं है तो सारे जनरल आदमी है तो जनरल आदमी के बारे में ही बताऊंगा कि अगर आपका फैक्ट्री है या कोई दुकान है तो उसी में किस प्रकार से सेफ्टी करनी है वो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट 25 तारीख वाला सूरत का एग्जाम के बारे में आपकी क्या राय है बताओ। पहले 25 तारीख इंसिडेंट हुआ था, आपने क्या सोचा है क्या सुना है, कोई भी आदमी बताओ। सर 25 तारीख को शाम को तो आग बुझ गया था जो ना। यस यस एब्सोल्युटली राइट। और उसके बाद हाँ। 26 तारीख को सुबह फिर अचानक से आग लगी है। हाँ हाँ वो आग इतनी विकराल, वो भी बेसमेंट में लगी थी 25 तारीख को आग, और 26 तारीख को तीसरे या पांचवें माले पे लगी आग, ऐसा कुछ था। ओके। और मेरे ख्याल से ना वो आग जो 26 तारीख को लगी वो कंट्रोल नहीं हो पाई 2 दिन तक। अब ये बताओ 25 तारीख को जो आग लगी थी इसके बाद 26 तारीख को कैसे लगी, आपकी सोच में क्या है, आपको क्या सुना है? सर ये सुना वाली बात करता हूँ, आपका ये ओपिनियन नहीं है, आपने जो सुना है अपने कानों से सुना वो बोल रहे हो। सही बात है। जानबूझ के लगा ये सुना हुआ था या अगले दिन कोई गलती रह गई थी ये सुना था? जो सुना वो बताओ, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे कोई जगह वो ये सुबह वो कोई लाइट ऑन की। हाँ तो लाइट होती। ओके, अब मैं इसका क्लियर रीजन कोई नहीं। जब फायर लगती है, सब मेरे विटनेस है, फायर के बाद सारे अवशेष खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट अगर आई विटनेस होगा, अगर कैमरा होगा तभी पता चलता है, इसके सिवा कोई रीजन नहीं पता चलता है। जस्ट एजम्पशन लगाना होता है, उस एजम्पशन के जरिए सबका स्टेटमेंट लेने के बाद एक के बाद एक स्टेटमेंट लेंगे, क्रॉस स्टेटमेंट लेंगे, तब पता चलेगा एक्चुअल रीजन क्या था। इसका एक्चुअल रीजन तब मिलेगा जब इसका इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करने के लिए मार्केट वाले तैयार होंगे तो। अब मार्केट वाला कोई इस रीजन के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं प्राइमा फेशिया बता देता हूं कि वहां पे आपने देखा होगा कि 4 लाइनें हैं। पहला रोड है, इसके बाद एक दुकान है, फिर बाद में जाने के लिए पैसेज है, इसके बाद दुकान है, इसके बाद ओटीएस है, इसके बाद दुकान है, फिर पैसेज है, फिर दुकान है, फिर रोड है। बराबर? तो जो ग्राउंड में आग लगी थी वो सेकंड लाइन में लगी थी। सेकंड लाइन में जहां पे आग लगी थी उसके पीछे वाला भाग, तो वहां पे उसका ओटीएस गिरता था, सामने वाला का भी ओटीएस था, इनका भी ओटीएस था। ओटीएस में हमारी नॉर्मली खिड़की रहती है, खिड़की को हम कचरा रखने के लिए उसको हम बॉक्स बना देते हैं, और बॉक्स में ज्यादातर आप फ्लैट में देखोगे तो भी वहां मिलेगा, कोई भी बिल्डिंग में देखो जहां बॉक्स होगा वहां बॉक्स में नॉर्मल कोर्स में जो कोई काम की चीजें नहीं है वही हम रखते हैं ना। तो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में यही हुआ था कि बॉक्स में से कोई तिनखा, इस सेकंड लाइन में से कोई तिनखा गया होगा सामने वाली लाइन में इन लोगों ने, और मैं भी 9 बजे गया था, 9 बजे इसके लोगों को चेक करने के लिए, क्योंकि ये सारे लोग मेरे दोस्त थे इसलिए मैं भी गया था 9 बजे जाके चेक किया था। ग्राउंड फ्लोर का जो बेसमेंट है, बेसमेंट की सारी फायर बुझ गई थी, सारा कूलिंग हो चुका था क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी फायर नहीं थी। अच्छा, उसका ओटीएस जो है शायद आपने देखा होगा, ओटीएस को फ्रंट से देखोगे तो बंद है, ओटीएस फ्रंट से बंद है, वह हम बाहर से चेक नहीं कर सकते। नॉर्मली ओटीएस खुला रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर शिव शक्ति मार्केट में ओटीएस बंद था, तो कोई भी आदमी ओटीएस के अंदर क्या हालचाल है समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता था। पीछे वाली खिड़की तक जा नहीं सकते थे, तो पीछे वाली खिड़की में से जहाँ फायर लगी थी वहां से कोई तिनका गया है, पीछे वाली 3rd नंबर की लाइन में, 2nd नंबर लाइन में से 3rd नंबर की लाइन में तिनका गया है, वो किसी को भी पता नहीं चलता था। अब वो तिनका पूरी रात धीरे धीरे प्रज्वलित हुआ, और शाम को फ्लाई करके ऊपर गया। 2nd फ्लोर में कुछ नहीं होगा, 3rd फ्लोर में जहां मटेरियल होगा उसको पकड़ लिया, उसी प्रकार पूरा मार्केट पकड़ लिया। नहीं शॉर्ट सर्किट हुई है, नहीं कुछ हुआ है। पावर काट दिया था, पावर कहां से आएगा, कहां से आएगा पावर? पावर तो काट दिया था। तो जो हम सुनते हैं वो सही नहीं होता है, लेकिन जब आप इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करते हो तब पता चलता है कि व्हाट वाज द रियल रीजन। अब दूसरी बात, पूरी मार्केट की सिचुएशन देख लो आप। मैंने बताया कि 15 फुट का रास्ता है, 15 फुट का रास्ता 10-15 दुकान तक स्ट्रेट जाता है, फिर बाद में टर्न लेता है, फिर बाद में वो सी शेप का बिल्डिंग है, एल शेप का बिल्डिंग है। एल शेप का बिल्डिंग होने के नाते फ्रंट वाली जो पीछे वाली लाइनें हैं वो आडी लाइनें हैं और यहाँ की उभी लाइनें हैं। उसका इंसिडेंट साफ फिर मैं रिपीट करता हूँ, साफ फिर बोलेंगे, इसलिए मैं इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन रियल रीजन यही था वहां पे कि फायर नीचे से ऊपर गई थी। 25 तारीख का ही कोई तिनका था, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि तिनका कपड़े में गया तो नहीं पता चलेगा। दूसरी चीज, अब पूरी मार्केट में आप जाओ, किसी भी मार्केट में पहुंच जाओ, किसी भी मार्केट की दुकान की सिचुएशन देखो तो एक बड़ा शटर होगा,
राइट साइड या लेफ्ट साइड वो गद्दी वाली बैठक होगी, छोटा सा मंदिर होगा, सामने ढेर सारे कपड़े होंगे, या बड़ी हाइट वाली होगी तो मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट में कपड़ा रखते हैं, मेजरमेंट जाने के लिए एक सीढ़ी होगी, बराबर। किसी ने भी कहीं भी फायर का एक भी बॉटल रखा है तो दिखाओ, रखा है किसी ने? प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी अपनी है, लेकिन हम वो नहीं रखते, हम डिपेंड करते हैं मार्केट के वहीवटकर्ता के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम नहीं रखते हैं। तो ये सिचुएशन हमारी मार्केट की है। दूसरा, वायरिंग की बात करूं तो जब वायरिंग हम करवा, जब हमने बिल्डिंग परचेज रेंट पे लिए, खुद परचेज किए, तो वायरिंग वो एज ओरिजिनल होता है, इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, अब कितने लाइटिंग है, इतनी लाइटिंग का यहाँ पे पावर है या नहीं है वो हम कभी नहीं चेक कर सकते, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये सब का लोड हमें चेक करना है। दूसरा, ये जब वायर किया होगा, अगर अंदर में मैं चेक करवाऊं और तोड़ के अंदर चेक करूं तो यहाँ भी जॉइंट लगाया होगा, चाहे अपना एससीसी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ जॉइंट लगाया होगा। तब उस टाइम में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कभी यहाँ भी फायर लग सकती है। अब नया कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है, भी साथ साथ बताऊं कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर हमें फायर नहीं लगे, सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रिवेंशन करना है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी इस प्रकार से रखूं कि ताकि मेरे यहाँ फायर लगे ही नहीं, मेरे यहाँ फायर लगे ही नहीं। तो फायर कैसे लगती है बताओ, कोई बता सकता है? शॉर्ट सर्किट। लेकिन फायर के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए, फायर चाहिए, तीन चीजें चाहिए। कैन वी रिमूव द ऑक्सीजन? हम ऑक्सीजन दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम मटेरियल दूर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें प्रोसेस करना है, हमें काम करना है, मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। तो कौन सा दूर कर सकते हैं? स्पार्क। तो स्पार्क कहां से आएगा? स्पार्क आएगा कहां से? इलेक्ट्रिकल हो गया या सिगरेट बीड़ी। इतना इंसिडेंट के बाद हम सीखे क्या? बताओ हम क्या सीखे? तो इसका जवाब क्या आएगा? बराबर है ना? थोड़ा बहुत अमिताभ बच्चन को सुन लेते हैं, कुछ बोलना चाहता है, नहीं गए। ये क्यों हुआ? फर्स्ट में क्यों आ गए भैया? ओके, अमिताभ बच्चन नहीं सुनना है, सुनना है। नहीं बोले तुमने पेन ड्राइव में नहीं खोले? चलो अमिताभ बच्चन से हम क्यों चाहिए सुरक्षा? Why we are working? हम काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने। क्या करोगे पैसा का? सबसे सही जवाब क्या? किसके लिए? we all are working for family only. क्योंकि जब शाम को हम घर जाते हैं तो कोई हमारा इंतजार करता है। पैसा तो ठीक है, वो तो हाथ का मैल ऐसा बोल सकते हैं, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मेंटेन करना है हमारा फैमिली, उनके लिए हमें काम करना पड़ता है। और एक पुरुष होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते 20 साल से लेकर 60 साल तक 12 घंटा हमें घर से बाहर रहना पड़ता है। 2% ऐसा मिलेगा नोटरियस आदमी, उनके लिए हम बात नहीं करते, लेकिन 98% पुरुष की ये जिम्मेदारी बनती है जब हमारे 20 साल की उम्र होगी और 60 साल तक, क्योंकि फैमिली इज कनेक्टेड विद, हमारे फैमिली कनेक्टेड है, उसका संभाल रखना, देखभाल रखना, बच्चे को बढ़ाना, माँ बाप का ध्यान रखना, बीवी को खुश रखना, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमें काम करना पड़ता है। जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता है, मुनाफा मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो उससे हमारा घर चलता है। अब ये फायर के लिए कायदा क्या है, नियम क्या क्या है? तो ये आइए स्टैंडर्ड है, एक है 1339, ये है फायर हाइड्रेंट का प्रोविजन किया गया है, 15/105 में स्प्रिंकलर का प्रोविजन किया है, 2190 अभी नया आ गया है, ये 2010 का है, लेकिन एक नया आ गया है 2024 का, ये एक्सटिंग्विशर के लिए है। 15,325 है वो स्प्रिंकलर के लिए है, डिजाइन और फिक्स ऑटोमेटिक हाई रिस्क वाला है उसके लिए। अब ये हाई फायर कर्स, ये टाइगर, 3 चीजें मिलेगी तो फायर होगा, 3 चीजें नहीं, 3 में से एक भी चीज निकल जाएगी तो फायर नहीं होगा। इसमें से हमें यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है? हीट निकालना है, हीट निकालना है। क्या निकालना है? फ्यूल हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे ब्रेड बटर है, रोटी है, और ऑक्सीजन तो हमें इनहरेंट चाहिए ही चाहिए, तो हमें हीट निकालना है।
अब हीट कहाँ से मिलेगी? थोड़ा बहुत जल्दी चलता हूँ तो आधे घंटे में खत्म करना है। हीट कहाँ से मिलेगी? कहीं ना कहीं स्पार्क से होगी, वेल्डिंग कटिंग से होगी, कोई स्मोकिंग से होगी, कोई वेल्डिंग कटिंग होगा उससे होगी, बराबर। अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? अगर नॉर्मली बात करें तो आजकल के जनरेशन में एवरेज जो इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी है, लेकिन वो स्मोकिंग नहीं करता है। यंगस्टर जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो स्मोकिंग करता है, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर जो है या ओनर जो भी है, इसी में से 95% स्मोकिंग नहीं करते, 5% करते हैं। तो ये हमें दूर करना है तो क्या कर सकते हैं? चलो मेरी शॉप है या मेरी दुकान है, अरे दुकान है, मेरी फैक्ट्री है या मेरा कोई कारोबार है जहाँ पे मेरे 5 आदमी या 50 आदमी काम करते हैं, उनको स्मोकिंग से रोकना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऑफिस में रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन कर दो, स्टार्ट फ्रॉम द गेट। सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट कर दो कि कंपनी में कोई भी आदमी बीड़ी माची चेकर नहीं आ रहे, पर वो बीड़ी पीने से मना करना है। नोबडी इज अलाउड टू वो इनसाइड द प्रीमाइसेस कर सकते हैं। अगर स्मोकिंग से हमको डर है तो फाइन लगता है, तो अगर ये बंद कर दोगे तो स्मोकिंग होगा नहीं होगा। अब ये बात बताता हूँ, दिया, धूप और अगरबत्ती मार्केट में ऑलमोस्ट आप देख लेना, जहां भी हमारा मंदिर है उसके नीचे, नहीं दिया बत्ती बंद करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, वो तो भगवान है, उसको तो प्रार्थना में करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसका लोकेशन उस प्रकार से रखो ताकि नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। उतनी जगह तो हमें सेफ रखनी चाहिए ताकि वही दीपा धूप अगरबत्ती से हमारा फायर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मार्केट में बहुत बड़ा मंदिर बनाता है, बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन वहां उस प्रकार से मत किया करो ताकि वो भगवान भी मजबूर हो जाए कि नहीं उसको तो जला देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दिया, धूप और अगरबत्ती संभाल के इस्तेमाल करना है, उसको वैसे छोड़ देना नहीं है। वेल्डिंग कटिंग करना है तो वेल्डिंग कटिंग, शॉप की बात करो तो वेल्डिंग कटिंग कहाँ होगा? बाहर। हम अगर उसका जो विंडो है वहां बॉक्स बनाएंगे तब, जब बॉक्स बनाते हो तो नीचे वाले मटेरियल भी नीचे पड़ा होगा, तो उनको भी हमें संभालना है, उनको भी बोलना है कि नीचे वाला मटेरियल हटा दे। तो जब बिल्डिंग करना है तो पूरा एरिया क्लीन करना है। बिल्डिंग के दौरान भी वहां पे आपके पास आए एक ऑक्सीजन सिलेंडर, अरे कार्बन अपना फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो हम कम से कम इमरजेंसी में उसको कंट्रोल कर सकें। अब फिर पॉइंट नंबर ए पे आता हूं, स्पार्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की टॉपिक का है। अपने दुकान में कहां से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कहां स्पार्क हो सकता है, इसको ही ध्यान रखकर बोल सकते हैं। पहले तो मोबाइल चार्जर भी नहीं होगा, मोबाइल चार्जिंग, पिनिंग एक, दूसरा वायर जॉइंट, तीसरा बल्ब, पंखा और एसी, जहाँ पे भी जॉइंट्स है वहाँ पे भी, जहां भी जॉइंट है वहां पे, ओके, ओवरलोडिंग, ओके। अब इसको कंट्रोल करना है तो क्या कर सकते हैं? मैं तो जवाब से ही दूंगा, आप जानते हो, इसीलिए आपसे जवाब दूंगा। पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करना चाहिए। पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करना चाहिए, और एमसीबी, ईएलसीबी तो एमसीबी लगाना है, और लगाना चाहिए, एफआरएलएस केबल होना चाहिए, एफआरएलएस केबल होना चाहिए, और स्पार्क कैरेस्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो, और केबल में जॉइंट नहीं होना चाहिए। केबल में जॉइंट होना चाहिए, केबल कोटिंग, ओके। अब सिंपल सा फंडा, जब आपने दुकान ली थी तब उस पर्टिकुलर दुकान का लोड कितना था, कभी किसी ने चेक किया है? आना बोलना, क्यों नहीं किया? और अब क्या? एक एक पॉइंट का मैं क्वेश्चन करूंगा, आपके पास जवाब लूंगा, आपका ना जवाब होगा तो कल आपको क्या करना है वो भी आपको बोलना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कल आपकी दुकान का लोड चेक करना है। लिखना तो लिख लो, इसमें लंबा थोड़ा खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपको फायदा होगा ये जरूर मैं जानता हूं, आपको फायदा होगा वो मैं जरूर जानता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके दुकान का लोड चेक कर लेना है। अगर अंडर लोड है तो आपको लोड बढ़ाने के लिए जीबी में या टोरेंट में एप्लीकेशन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका वायरिंग जो किया था वो सारा का सारा वायरिंग जो है, एक तो कंडक्ट वायरिंग करना है, मेटल कंडक्ट में वायरिंग करना है,
कहीं भी जॉइंट, जहां से स्विच में से वायरिंग लिया ट्यूबलाइट तक एक ही वायर होना चाहिए, बीच में जॉइंट होना नहीं चाहिए। नंबर 3, पंखे का पॉइंट या कनेक्टर है, वहां पे कहीं कोई टेप लगा कर नहीं करना है, लेकिन वहां पे कनेक्टर लगाना है। अपन क्या करते हैं, पंखे का वायर लिया, टेप मार दिया, वो धीरे धीरे जो लूज होता है वहां से लूज कनेक्शन होगा तो स्पार्क होगा तो कभी फायर हो सकता है। चौथा, मार्केट में शायद चूहा भी बहुत होगा, तो चूहा क्या करता है, कपड़ा काटता है, वायर काटता है, एक तो अपना नुकसान करता है, तो चूहा कंट्रोल करने के जो भी इंतजाम है, जो भी सिस्टम है, वो हमको करना है। किया है हमने तो ना भाई हमने नहीं किया, हम तो जेल है, हम ये मारने का नहीं करते। लेकिन मारने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ चूहा का पिंजरा ले लो, पिंजरे में निकाल के कहीं और रख के आओ, लेकिन हमें चूहा हमारी शॉप में से दूर करना है। चूहा होगा तो वायर कटेगा, कभी वायर कटेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। अच्छा, अपनी दुकान अगर पुरानी है, पुरानी दुकान में वायर डिटोरिएट होता है, वो डिटोरिएट हुआ है तो वायरिंग नया कर दो। एक दुकान का अगर वायरिंग नया करना है तो खर्चा कितना होगा? 20 बाय 20 की दुकान है तो खर्चा कितना होगा रफली? मैं तो बताऊं 20,000 रुपया होगा। अपनी दुकान में माल कितना होगा? अभी प्रेजेंट बात करें तो कितना कितना करोड़ों रुपए का माल बोलते थे, लेकिन करोड़ रुपए का माल नहीं था, हम नॉर्मली बात करते थे। एक दुकान में 5 लाख 60 लाख रुपया का माल होता है। 5 लाख का माल बचाने के लिए अगर आपको 25,000 का वायरिंग नया करना है तो दिक्कत क्या है? कंपनी, दुकान किसकी है? दुकान हमारी है। माल किसका है? हमारा है। पैसा किसका है? हमारा है। प्रॉपर्टी चलेगी तो किसकी जाएगी? हमारी जाएगी। कोई अपने को मदद करने के लिए आएगा? नहीं आएगा। तो अपनी सेफ्टी किसके हाथ में? हमारी सेफ्टी सिर्फ एंड सिर्फ हमारे हाथ में। हमें इसको कंट्रोल करना है, और ये कंट्रोल करने के लिए इतना ही पॉइंट है, कोई पॉइंट ही नहीं है। अब इसके साथ साथ मेरे दोस्त ने बताया था कि ईएलसी भी लगाना है, आरसीसी भी लगाना है और एमसीबी लगाना है। ईएलसीबी का मतलब क्या? ओके, बराबर। अगर ईएलसीबी लगाओ तो क्या होगा? कहीं भी अगर चूहा ने काटने का कोशिश किया तो क्या होगा? ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, करंट लूज होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? वहां फायर लगने का चांसेस नहीं है। तीसरी बात, आरसीसी भी कहां लगाना है? फ्यूज के बाद लगाना है। एमसीबी, सारी लाइनें, जितनी भी लाइनें जाती है, एक आरसीसी की कीमत कितनी? नहीं, कैपेसिटी के हिसाब से होता है। मिनिमम 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की एमसीबी होती है। सपोज आपने 3 लाइनें ली है, 4 लाइनें ली है, तो 4 लाइन के 4 एमसीबी के आरसीसीबी का ईएलसीबी का खर्चा कितना? 6000 रुपये। पर लेकिन जिस लाइन में आपको फायदा मिल जाएगा। तीसरी चीज कि आपके गेट के पास ही जहां आपका शटर है, शटर के पास ही अंदर, जैसे अपने को बाहर निकल के लॉक करना है, शटर बंद करना है, उसी जगह पे आप उसे स्विच बोर्ड पूरा स्विच बोर्ड एक ही जगह पे रखो तो फायदा क्या होगा? वहां आप एमसीबी डालो रखोगे तो जैसे ही हमने दुकान बंद की, हमारी एमसीबी बंद हो जानी चाहिए, ताकि पावर ही नहीं रहेगा तो रात में फायर कहां से लगेगी? कर सकते हैं? कर सकते हो ना सब लोग? कितना खर्चा है? मैं सारे खर्चे में भी आऊंगा। अपनी 5 लाख की प्रॉपर्टी बचाने के लिए क्या 50,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकते? फिर हम दूसरे दौड़ने की नजर में थोड़ा आवाज इस प्रकार से, फिर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। प्रॉपर्टी हमारी, हमें इसको बचाना है, हमारे लिए बचाना है, नहीं दूसरों के लिए। ये हमें करना है। आज जितने भी बैठे उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कल जाके सबसे पहले यही करना है कि हमारी प्रॉपर्टी में, हमारी दुकान में, हमारी जो भी प्रीमाइसेस है उसी में हम इलेक्ट्रिकल ऑडिट करवाएंगे। क्या कराएंगे? खैर बता देता हूं, मैं इलेक्ट्रिकल ऑडिट नहीं करता हूं, ताकि ऐसा नहीं हो कि मुझे धंधा करना है इसलिए मैं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिकल ऑडिट इज नॉट माय सब्जेक्ट। आपकी दुकान का आपको हर इतने जितने भी बैठे उन सबको इलेक्ट्रिकल ऑडिट करवाना है। अगर दुकान की बात करूं तो एक दिन में 5 दुकानों में इलेक्ट्रिकल ऑडिट हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल ऑडिटर हमारे चैम्बर का ही मेंबर है, करता है तो 15,000 रुपये चार्ज करता है। एक दिन का 15,000 रुपये चार्ज करेगा और हमारी 5 दुकान कवर होगी। एक को कितना रुपया आया? कैन वी डू इट? हम दोस्त के लिए 3,000 रुपये कहीं ना कहीं बिगाड़ देते, कुछ खाना खाने के लिए ले जाते तो 3,000 रुपये बिगाड़ के आ जाते। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी बचाने की, हम 3,000 रुपये क्या नहीं बिगाड़ेंगे? तो कल आपको यहीं से अपने मयंक भाई नंबर
मतलब बैंक का नंबर शेयर कर दो। ये मंत्रा के थ्रू करता है, वो पर्सनल नहीं करता है। मंत्रा इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन। मंत्रा के थ्रू अपना ऑडिट करेंगे, ऑडिट करवाओगे, कहीं आपका लूज होल होगा, लूज कनेक्शन होगा, जो भी होगा इमीडिएटली रेक्टिफाई होगा और एमसीबी लगाओगे। एमसीबी लगा के रात को बंद करके जाओ तो रात को आपके फायर नहीं लगेगी। ये मेरी गारंटी है आपको। दूसरा, दिन में फायर लगी तो क्या करोगे? ये मैंने बोल दिया इसलिए मैं निकाल देता हूं, आधे घंटे में खत्म करना है। दिन में फायर लगी तो क्या करोगे? चलो हमारी मौजूदगी है, हाजिरी है, फायर इनिशिएटिव कितनी होती है? छोटी ही होती है। बढ़ती क्यों है? कैसे बढ़ती है? फ्यूल मिल जाता है। हम घबरा जाते हैं। फ्यूल तो है ही, अपने पास फ्यूल का कोई शॉर्टेज नहीं है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन हम घबरा जाते हैं। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट, हम फाप घूमने लगते, क्या करें क्या नहीं करें। हम सीधा फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, हम मार्केट वालों को नीचे बुलाते हैं, वॉचमैन को बोलते हैं, सिक्योरिटी बोला। सिक्योरिटी आके क्या करेगा भाई? वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास फैसिलिटी नहीं है। इसलिए हमारी दुकान की सेफ्टी हमें खुद को करनी है। अब क्या करना है? प्राइमरी फायर के लिए क्या करना है? सिर्फ 4 एक्सटिंग्विशर लगाना है। कितना? दूसरा आदमी लगाए या नहीं लगाए, बाजू वाला जाए, थोड़ा हाथ भाषा में बात करो, बाजू वाला जाए बाहर में, मैं मेरी सेफ्टी पहले करूंगा। वहां पे मुझे 4 एक्सटिंग्विशर चाहिए, चारों 4 कोने में। आपको डेकोरेटिव करना है तो वो भी आप कर सकते हो पहले वाले कोने में, ताकि 1 2 3 1 2 3 2 यहाँ पे लगाओ, 2 यहाँ पे लगाओ, 2 उधर लगाओ, 2 उधर लगाओ, या 2 और 2 4 शटर के पास में लगा दो। इंजीनियर को बोल देना मुझे इसको डेकोरेटिव करके बना दे, वो बना देगा। शो में भी खराबी नहीं होगी और हमारा काम होगा। अब इस एक्सटिंग्विशर की बात करता हूं। सब मार्केट में 750 रुपयों में एक्सटिंग्विशर मिलता है और 43 रुपये में एक्सटिंग्विशर मिलता है। क्या 43 रुपये बेचने वाला मूर्ख आदमी है, इतना नफा लेगा? साड़ी की बात करूं, आज 100 रुपये में भी साड़ी मिलती है और 5000 में भी साड़ी मिलती है। व्हाट इज द डिफरेंस? सब क्वालिटी है। तो एक्सटिंग्विशर में क्वालिटी नहीं देखने का? देखते हो आप? आपको पता नहीं इसलिए नहीं देखते हो, नहीं देखते इसलिए नहीं देखते हो। एवरेज क्वालिटी की बात करो तो 2000 के आसपास जो एक्सटिंग्विशर आता है, 2200 के आसपास जो एक्सटिंग्विशर आता है, वही आपको लगाना है। और आजकल छिला 4 साल से, जब से तक्षशिला इंसिडेंट बना तब से पूरे गुजरात में हमने एक थंब रूल बना दिया है कि एक्सटिंग्विशर रखना है तो 6 kg वाला ही रखना है। बराबर है? और वो लेना है एबीसी। कौन सा लेना है? एबीसी का। क्वालिटी के बारे में अगर किसी को पूछना है तो मेरे को पूछ लेना। एबीसी पाउडर, एबीसी में पाउडर आता है मोनोअमीन फॉस्फेट। वो पाउडर की कॉस्टिंग होती है, आप समझ लेना, कॉस्टिंग से भाव डिसाइड होता है। 15 रुपये केजी से लेकर 160 रुपये केजी वाला पाउडर की इस्तेमाल होता है। तो 750 वाला कौन सा यूज करता होगा? और 2200 वाला? सिंपल सी बात है, वही एक्सटिंग्विशर है, कोई फर्क नहीं है। साहब को पूछो, साहब बताएगा, मैं याद करूंगा साहब को, सब एक्सटिंग्विशर का बताओ। मैंने ना बोल दिया था, सब ये कंपनी का एक्सटिंग्विशर नहीं ओपन होगा। और रियल में यही हुआ, ओपन नहीं हुआ, गैस नहीं निकला। ट्रस्ट द कंपनी। आईएसआई से मत देखो, सारी चीज में आईएसआई लिखा हुआ है, लेकिन मत देखो। वही चीज साड़ी के बारे में बात करो। साड़ी में आप प्रिंटिंग करवाते कहाँ करवाते हो? 375 डाइंग हाउस है। हर डाइंग हाउस की क्वालिटी अलग है, लेकिन आप जो बनाते हो उसका भी दूसरा डाइंग हाउस में नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी कॉस्टिंग में कम, लेबर रेट में बदलाव है। क्यों बदलाव है? बिकॉज पर्टिकुलर आदमी क्वालिटी देता है, दूसरा आदमी क्वालिटी नहीं देता है। वो क्वांटिटी में मानता है, दूसरा क्वालिटी में मानता है। इसीलिए अगर हमें क्वालिटी प्रोडक्ट करना है तो एक्सटिंग्विशर में भी क्वालिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2। अब आपके पास एक्सटिंग्विशर है, आपको पता चल गया कि ये कॉर्नर में आग लगी है और शॉप के नजदीक में ही है, तो आप ऑपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सिंपल टेक्निक है, कोई बड़ी टेक्निक है, कोई भी आदमी ऑपरेट कर पाएगा। मेरे पास टाइम है या 2 घंटा भी मुझे कम पड़ता है इसमें, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि एक्सटिंग्विशर का यूज करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है। सील तोड़ो, खोलना नहीं है, तोड़ना है। जैसे मैं बटन ये मैंने खोला, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो क्या हुआ? तोड़ दिया। तो सील को तोड़ना है, खोलना नहीं है।
वहां जबरदस्ती करनी है। सील को तोड़ दिया, पिन निकाला, लोकेशन तय किया, हैंडल दबाया, बस, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो छोटी फायर आप बुझा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको एक डजन एग्जांपल दे दूं, एक डजन एग्जांपल, नाम कंपनी के नाम के साथ एग्जांपल दे दूं कि वहां पे ऐसा हुआ तो इस आदमी ने मतलब एक जगह पे एक जगह का एग्जांपल बताता हूं। वो अपने कंस्ट्रक्शन में जो लेडी काम करती है, वो टोपला वाली, उस कंपनी में 1 महीने का हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। 1 महीना सेफ्टी मंथ ऑफ द ईयर, सेफ्टी मंथ ऑफ द कंपनी, सबको ट्रेन करना है, सबको एक्सचेंज का इस्तेमाल करना है। तो हमने 50 आदमी को ट्रेन किया। हर शनिवार मेरी मीटिंग होती थी, दूसरे शनिवार गया, कितना किया तो 50 आदमी, तो दूसरा 50 का किया, तीसरा 50 किया। 1 महीने के बाद सारे आदमी के एम्प्लॉय जो होते हैं सबको ट्रेन कर दिया। एक बार फायर हुई तो मेरे को फोन किया, सब फायर हुई अपनी कंपनी में, तो मेरे को क्यों फोन किया, नॉर्मली जो भाषा यूज करता हूँ, मेरे को क्यों फोन किया, जो काम करना है वो करना है भाई पहले तो। मतलब नहीं सर, वो तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है सर। आधे घंटे में फिर फोन करता है, सर फायर बुझ गई। कैसे बुझ गई भाई? देखो वहाँ पे वो 2 लेडी काम करती थी ना, मजदूर काम करती थी, मजदूर ने फायर बुझा दी। मैं तो खुश हो गया, हंसने लगा, मैं मजदूर ने कैसे फायर बुझाया? मतलब सर हमने आपने उसको ट्रेनिंग दिया था ना, ट्रेनिंग किया था, इसलिए उसने फायर बुझा दिया। अगर आपको ये ट्रेन है, आप ट्रेन हो, तो आप खुद अपनी ऑफिस का, अपनी फैक्ट्री का या अपनी जगह का, शॉप या कुछ भी है, उसकी फायर हम बुझा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही रीजन से ही एक्सटिंग्विशर हमें रखना है। मैं मानता हूं कि आप किसी की भी शॉप होगी तो वहां पे एक्सटिंग्विशर नहीं होगा, है? चलो ये अलग चीज। हमें ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ, कारीगरों को सबको बुला के। आपकी क्या है शॉप है? हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री वालों को नहीं बोलो, शॉप वाले के बारे में बताता हूँ। फैक्ट्री एक अलग चीज है, शॉप अलग चीज है। अब ये एक्सटिंग्विशर आपके पास हो गया, आपने फायर बुझाने की कोशिश की, चारों 4 बॉटल अपना खत्म हो गया, फिर भी फायर नहीं बुझी, तो व्हाट इज द सेकंड ऑल्टरनेट? फायर हाइड्रेंट कौन ऑपरेट कर पाएगा? हम नहीं कर सकते हैं फायर हाइड्रेंट लाइट, ये हमारे बस की बात नहीं है। सिंपल सा वहीं पे होज रील है, एक होज रील 30 मीटर तक लंबी खींच सकते हैं। कितना? 30 मीटर से दूर तक अकेला आदमी खींच के ले जाता है। कितनी मार्केट में होज रील तैयार कंप्लीट हमारा वर्किंग में है? बताओ, कोई बता सकता है? नहीं है ना? तो यहाँ पे 2 पहलू इंपॉर्टेंट हुआ। पहला पॉइंट नंबर 1 कि हमारी शॉप है, हमारी खुद की है, तो उसकी सेफ्टी हम खुद करेंगे, उसकी सेफ्टी हम खुद करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन के बाद अगर हो गया तो हम उसको फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर से करेंगे। एक्सटिंग्विशर नहीं होगा तो हम हमारी सोसाइटी ने जो इस्तेमाल किए, इंस्टॉल किया है, वो होज रील का उपयोग करेंगे। पैरेलली हम हमारी कंपनी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वहीवटदार है, उनको फोन करके बताएंगे ताकि वो होज रील ऑपरेट करने के लिए जो आदमी रखा है उनको बुला करें। ड्यूरिंग द टाइम हमारी हाजिरी में हुआ तो हम कर सकते हैं, हमारी गैर हाजिरी में हुआ तो हम कर सकते हैं। अब अगर दूसरा पॉइंट कि पता कैसे चलेगा रात के समय? साहब लोग क्या लगवाते हैं? मैं साहब के ऊपर उंगली करता हूँ, क्या लगवाते हैं? स्मोक डिटेक्टर लगाओ, बराबर। ये साहब के साथ एक पॉइंट में तो मैं एंटी हूँ, वो बात करना जा रहा हूँ। साहब क्या बोलते हैं? वायर वाला ही लगाना, बिना वायर वाला नहीं, वायरलेस नहीं लगाने का। मैं जिक्र करता हूँ वायरलेस लगाने के लिए। क्या फायदा होगा वायरलेस और वायर वाले में? अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमें वायरलेस लगाना है। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी इतनी आई है, आपके घर के मोबाइल में रिंग बजेगी। आपके घर के मोबाइल में आप जो 5 नंबर दोगे, 5 नंबर में रिंग बजेगी कि आपके यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल लगी है। आर यू रेडी टू डू दिस? करने के लिए तैयार हो? बराबर। तो ये करोगे तो रात में अगर फायर लगी तो आपको घर में भी पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ये लोकेशन पे, आपने जितना भी लोकेशन दिया होगा, ये लोकेशन पे आपकी फायर लगी हुई है, तो आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो। तो डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। डिटेक्शन के लिए नॉट ओनली स्मोक डिटेक्टर, इसमें हीट डिटेक्टर आता है, बीम डिटेक्टर आता है, लेकिन हीट डिटेक्टर और बीम डिटेक्टर हम टेक्सटाइल में नहीं लगा सकते, क्योंकि टेक्सटाइल में हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम कहां कब माल कहां पे रख देंगे। सर्टन लेवल से ऊपर माल नहीं रखना है।
ये अगर हम तय कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, तो हम बीम डिटेक्टर भी लगा सकते हैं, हीट डिटेक्टर भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज बताओ, हीट डिटेक्टर नहीं लगाने से क्या कहता है, ये ट्यूबलाइट है यहाँ पे, मैंने यहाँ तक माल लोड कर दिया, क्या होगा, धीरे 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 ये माल गर्म होगा, पहले कड़क होगा जो हो जाता है, कड़क होने के बाद ज्यादातर लाइट चालू रहेगी तो क्या होगा, वहां गर्म होने के बाद थोड़ा बहुत धुआं निकलना चालू होगा, धुआं हमें ध्यान में नहीं आएगा और हम बंद करके चले जाएंगे तो वहां से फायर होगा। एक कंपनी में 32 करोड़ का लॉस हुआ है, यान की कंपनी में, बिकॉज ऑफ दिस हीट ओनली, बिकॉज ऑफ दिस हीट ओनली, वहां तक माल कर दिया था। और आप डाइंग हाउस में जाते हो, डाइंग हाउस में जो भी स्टोर है वहां ऊपर तक डाल देते हैं, तो जगह ही नहीं छोड़ता है। ये हाल मार्केट का है, कोई जगह ही नहीं छोड़ना चाहता है, तो हमें ये कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, माय फर्स्ट पॉइंट वाज प्रिवेंशन, सेकंड पॉइंट वाज डिटेक्शन एंड थर्ड पॉइंट वाज फायर फाइटिंग ड्यूरिंग आवर प्रेजेंस एंड इन आवर एब्सेंस। अब तीसरी चीज, और कितनी मार्केट में स्प्रिंकलर सिस्टम है, हमारी दुकान में है? नहीं है साहब, कहीं भी नहीं है, एक भी शॉप में नहीं है। न्यू मार्केट में तो अटैच ही है कौन सा? आप ब्रांडेड ले लो, नहीं, नई मार्केट की बात करता हूं मैं, पूरा नहीं करता हूं। नया जितना हुआ है उसमें भी आधे में हुआ है। मैं दुकान के अंदर की बात करता हूँ, दुकान के अंदर, पैसेज में नहीं, पैसेज में फायर नहीं लगती है, पैसेज में तो सिर्फ वो अपना वो घड़ी वाला, क्या बोलते हैं, मीटर वाला, माप वाला रहता है और थोड़ा बहुत पेपर वाला कचरा रहता है, इसके जो कुछ नहीं। बराबर? क्या बोलता था? स्प्रिंकलर। अभी हमारी सब शॉप में अगर स्प्रिंकलर हो जाए तो फायर बुझ जाएगी ना, पक्का? सब नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि वहां पे आपने डिजाइन कैलकुलेशन नहीं करवाया है। जब तक डिजाइन कैलकुलेशन के साथ, हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के साथ अगर स्प्रिंकलर नहीं होगा तो नहीं फायर बुझेगी। इसका एग्जांपल देता हूं, कब हाई राइज में कितने लोग रहते हो? हाई राइज में बहुत सारे बिल्डिंगों में अपने गीजर चालू करने के लिए प्रेशर पंप लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग है जहां पे हमने प्रेशर पंप नहीं लगाया है। मेरा 4 फ्लैट है, 4 फ्लैट में से एक फ्लैट में प्रेशर पंप नहीं लगाया है, बाकी 3 में मुझे प्रेशर पंप लगाना पड़ा, क्योंकि पहला वाला जो बिल्डिंग है उसने डिजाइनिंग प्रॉपर की है, तो विदाउट प्रेशर पंप मेरा प्रेशर सही मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता। व्हाट इज द रीजन? इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम। अगर स्प्रिंकलर सिस्टम में पूरा हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के किए बिना अगर स्प्रिंकलर सिस्टम किए है तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के साथ आपको डिजाइन करवाना है, और वो है मार्केट का काम। 5 मिनट में खत्म करता हूं कि 850 करोड़ रुपए का हम नुकसान बताते हैं टेक्सटाइल मार्केट में, शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में। 800 करोड़ में से अगर उसको हाईटेक फायर फाइटिंग की सिस्टम करनी होती तो कितना खर्चा होता? ज्यादा से ज्यादा 2%, यानी कि 1.6 करोड़। हाईटेक करने के लिए 1.6, लेकिन कर देते हैं 50 लाख की, तो क्या होगा? साहब लोगों को क्या करना है ये भी बता दूं। साहब लोगों को जिस दिन इंस्पेक्शन के लिए आते हैं उसी दिन वो सिस्टम काम में आनी चाहिए, क्योंकि स्प्रिंकलर का टेस्टिंग नहीं हो सकता है। स्प्रिंकलर सिर्फ देखते हैं और हमने कवर कर दिए, ऊपर क्या रखा है हमको नहीं पता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो भी करना है सिस्टम अप टू डेट करना है। आज 40 HP की मोटर है, लगा देते हैं 60 HP का पंप स्टिकर। और पंप की कैपेसिटी की बात करो, पंप की कैपेसिटी HP से कंसीडर नहीं की जाती है, उसका फ्लो रेट से कंसीडर की जाती है। 97 का पंप लिया देते हैं और लिखता है 171 का। ये आपको चेक करना है कि रियल में 97 का है या 171। दूसरा, पंप और डीजल इंजन। पंप कब तक चलेगा? जब तक पावर कनेक्शन चालू होगा तब तक। जैसे पावर कनेक्शन बंद हो गया क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी डीजल ऑपरेटेड पंप। इट मस्ट बी डीजल ऑपरेटेड पंप। तीसरी बात, आपने पंप भी डाल दिया, आपने स्प्रिंकलर भी कर दिया, साहब ने एनओसी भी दे दिया, 2 साल के बाद एफएसओ ने एनओसी रिन्यू भी कर दिया, लेकिन उसको मेंटेन नहीं करोगे तो अब मेंटेन करने के लिए क्या करना है और क्या कर रहे हो? साहब भी बनते हैं, वो एफएसओ भी बनता है, इसको पेमेंट भी करते हो,
जिसको बोलते हैं एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आपकी इतनी बड़ी टेक्सटाइल मार्केट का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ 30,000 में करोगे और उसको बोलोगे 6 बार आके चेक कर तो करेगा? तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। रियल मात्रा में अगर उनकी जो कामगिरी है उस हिसाब से अगर एएमसी रखोगे और उसका रेगुलर आप खुद चेक करोगे, एएमसी परफेक्टली मेंटेन होगा, आपकी सिस्टम हरदम वर्किंग में होनी चाहिए। पांडे सर की 50 यूनिट है, 50 यूनिट में जाकर मैं नाम बोलता हूँ, जाके चेक कर लो, सारी सिस्टम वर्किंग में होगी। ये हमारी एक भी टेक्सटाइल मार्केट की 90% टेक्सटाइल मार्केट की सिस्टम वर्किंग में नहीं होगी। 90% उसको यूज करता हूँ, भाई साहब बैठे बोलता है मेरी सिस्टम चालू है, इसलिए इतनी चीजें करना है। ये रिपीट करके पूरा करता हूँ, ये आपको याद रखना है। फायर का 5 प्रकार है, A B C D E F, A B C D E and F। A यानी कि सॉलिड, B यानी कि लिक्विड, C यानी कि गैस, D यानी कि मेटल, E यानी कि इलेक्ट्रिकल, F ऑब्लिक K मतलब कुकिंग फायर। A એટલે सॉलिड, B એટલે लिक्विड और C એટલે गैस। अपने को 3 चीज याद रखनी है, चौथी का मैं याद रखनी जरूर नहीं। 3 के लिए एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज करना है? तो जिस एक फायर के ऊपर जो वर्ड लिखा है वो वर्ड वाला, वो शब्द वाला बॉटल इस्तेमाल करना है। सपोज ये टाइप की फायर है, सॉलिड फायर है, तो ये कौन सा बॉटल यूज करना है कि जिस बॉटल के ऊपर ये लिखा है। अगर बी की फायर है तो कौन सा बॉटल यूज करना है, तो कि जिसके ऊपर बी लिखा है। सी की फायर तो कौन सा बॉटल यूज करना है, तो कि जिसके ऊपर सी लिखा है। इसीलिए यूनिवर्सल बॉटल है ए बी सी, कहीं भी इस्तेमाल कर लो एक्सेप्ट पैनल बोर्ड, एक्सेप्ट पैनल बोर्ड। तो पैनल बोर्ड के लिए कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मैं रिपीट करके मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। मैंने 4 पॉइंट बताए, 4 पॉइंट को आपको आज से ही, कल से सुबह जाके इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको ऑडिट करना है, सबसे पहले आपकी स्विचिंग लोड चेक करना है, पूरा लोड फैक्ट्री का, फैक्ट्री है या शॉप है उसका लोड चेक करना है। तीसरा आपको ELCB, MCB और RCCB लगाना है, डिपेंड अपॉन द एडवाइस फ्रॉम द सीनियर एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कोई वायरमैन के पास से नहीं, आप वायरमैन का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि सस्ता पड़ेगा। ये तीसरी पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको स्मोक डिटेक्टर लगाना है, विदाउट वायर वाला वायरलेस स्मोक डिटेक्टर लगाना है, और इसको बोलते हैं IoT बेस करना है। IoT बेस का मतलब हुआ कि आपकी सिस्टम में 5 सिम कार्ड लग जाएगा। सिम कार्ड लगेगा तो आपके घर पे मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे हमारी फाइल लगी है। ये करना है। आपके एक्सटिंग्विशर रखना है, वो भी क्वालिटी एक्सटिंग्विशर रखना है। और छठा, नजदीक में आपकी होजरी होनी चाहिए। सातवां, आपका बिल्डिंग का जो भी कॉमन फैसिलिटी है फायर के, वो ऑल द टाइम वर्क रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को साथ दिया लेकिन आपने मेरे को 20 मिनट में चेतन बैठक खत्म करवा दी। 45 मिनट हुई इसके लिए मेरे को, क्योंकि साहब मेरे को मालूम है अगर इनको 3 दिन का क्लास है तो वो 3 दिन भी चलाते रहेंगे। 3 घंटे के लिए बोलोगे तो 3 घंटे भी बोलते रहेंगे। इसके लिए मेरे को रोकना पड़ा। થેન્ક યુ। તમે જોયું છે સાહેબનો ઉત્સાહ કેટલો હતો તે લોકોને અવેર કરવાનો। થેન્ક યુ। હવે કો ચેરમેન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ સિક્યુરિટી કમિટીના ચેતનભાઈ શેઠને વિનંતી કરું કે આજના જે ચીફ ગેસ્ટ છે ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શ્રી પ્રકાશ યદાવ સાહેબનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપો। થેન્ક યુ પરેશભાઈ। વેલકમ પ્રકાશભાઈ। પ્રકાશભાઈ છેલ્લા 4 મહિનાથી SMCમાં ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર તરીકે જોડાયા છે અને શાયદ અમારા હિસાબે આ એમનો પહેલો જ ઇન્સિડન્ટ આટલો મોટો ફાયરનો સુરતમાં બન્યો હશે। હું એમની વિશે થોડી માહિતી આપું કે પોતે RTMNU નાગપુર યુનિવર્સિટીથી BSc થયેલા છે। નેશનલ ફાયર સર્વિસ કોલેજ મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ નાગપુરથી ફાયર સબ ઓફિસર કોર્સ કરેલો છે એમણે 1999માં પાસ આઉટ થયેલા છે। ડિવિઝન ફાયર ઓફિસર કોર્સ એમણે નેશનલ ફાયર સર્વિસ કોલેજ ઇન 2015માં કર્યો છે। એડવાન્સ ડિપ્લોમા ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેફ્ટી ફ્રોમ MSBTE અને 2022માં LLB ફોર બાબા સાહેબ આંબેડકર લો કોલેજ RTMNU નાગપુરથી કરેલું છે। વોકેશનલ ટ્રેનિંગ એમની ડિસેમ્બર 2005માં CLI મુંબઈથી, સપ્ટેમ્બર 2006માં CLI મુંબઈથી, ડિસેમ્બર 2005થી માર્ચ 2007 સુધીમાં ફર્સ્ટ એડ ટ્રેનિંગ સેન્ટર થાણેથી અને ડિસેમ્બર 2007માં ICC એન્ડ MIDC
એસોસિએશન ચીપલુંથી અને એડિશનલ એમની ક્વોલિફિકેશનમાં બ્રોન્ઝ મેડલ અમને મળ્યો છે ડ્યુક ઓફ એડિનબર્ગ એવોર્ડ, ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ ફોર યંગસ્ટરમાં. તો હું પ્રકાશભાઈ હેડાવજીને વિનંતી કરીશ કે આગળનું માહિતી તમે. વેલકમ. थैंक यू. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा SGCCI का कि जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया, और हमारे आज के जो स्पीकर थे श्री LK डुंगरानी जी, इन्होंने बहुत अच्छा आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि किस तरह से फायर होती है और उसका हमें क्या इम्पैक्ट होता है और उसका असेसमेंट करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि फायर प्रिवेंशन को अच्छे से हम लोग काम कर सकें. जब भी कोई आग लगती है तो ये आग सिर्फ उस पर्टिकुलर एक व्यवसाय की नहीं होती, तो एक सोसाइटी और देश की भी बहुत बड़ी हानि होती है. क्योंकि अभी जैसे हम बात करेंगे कि 850 करोड़ का अगर लॉस होता है तो ये एक सोसाइटी का लॉस है, और सोसाइटी के साथ साथ हमारे देश की भी उतनी हानि है. पर्टिकुलर एक फैमिली तो सफ़र होती है, लेकिन साथ साथ सोसाइटी को भी, क्योंकि जहाँ पे भी कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट बाहर तक आता ही है. अभी फायर के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में बहुत अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और डुंगरानी साहब ने सब कुछ हमको बता दिया है. उन्होंने कहा था मुझे कि ये जो फायर हुई थी शिव शक्ति की, तो उसके बारे में हमें क्या क्या अड़चनें वहाँ पे आई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये जो फायर हुई, एक तो पहले 25 तारीख को हुई थी दोपहर में, तो वहाँ हमारी टीम गई थी, मैं खुद भी वहाँ प्रेजेंट था, और वो आग को उस दिन तो पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया था, और हमने बाद में भी रात में जाके चेक किया था तो सब कुछ नॉर्मल था. उसके बाद में ये सब होने के बाद सब नॉर्मल था, तो दूसरे दिन फिर से 8:19 पे हमें कॉल आया कि फायर हुई है. और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो उस फायर का सिनेरियो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये फायर पहले ही लग चुकी थी, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि अगर इनिशियल स्टेज पे ही हमको अगर वहाँ पता चल जाता कि ये फायर हुई है, या तो किसी ने बताने में थोड़ा डिले किया या कुछ हुआ है, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे तो तीनों फ्लोर पे एट ए टाइम फायर थी. और डुंगरानी साहब ने जैसा बताया कि अगर फायर जब भी छोटी होती है तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं तो एक आदमी भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे एट ए टाइम हमारी 5 से 6 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी, और सभी तरह से हमने फायर फाइटिंग करना चालू किए, तो भी हमको कम पड़ रहा था. तो हमने एक फायर ब्रिगेड कॉल दिए. फायर ब्रिगेड कॉल ऐसा होता है कि जिसमें पूरे सिटी के फायर स्टेशन को कॉल जाता है और सारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती है. तो 50 गाड़ी हमारी पहुँच चुकी थी. अब 50 गाड़ी और 150 से 200 का स्टाफ, पूरा सिटी का जो स्टाफ है वहाँ लग चुका था, और हम चारों साइड से फायर फाइटिंग करना चालू कर दिए थे. वहाँ दिक्कत ऐसी थी कि जब फायर लगी तो जाने के लिए रास्ते जो थे वो सारे ब्लॉक्स थे. समय तो सुबह का था, लेकिन बाहर में भी कार्डबोर्ड्स है, पैकिंग मटेरियल्स है, ये इस तरह से रखे गए थे कि जाने के लिए भी दिक्कतें हो रही थी. तो हम लोग तो बोलते हैं कि एग्जिट बराबर होना चाहिए, अप्रोच बराबर होना चाहिए, वॉकवे प्रॉपर ओपन होना चाहिए. तो यहाँ ये अड़चन थी कि सारे वॉकवेज वगैरह में सारा मटेरियल्स रखा हुआ था, जाने में दिक्कतें हो रही थी. दूसरी बात, जितने भी शॉप्स थे तो सब में शटर्स लगे हुए थे, मेटेलिक शटर्स थे. आग अंदर में जा चुकी थी, और जैसा इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन होता नहीं है, वहाँ कुछ हैंगिंग केबल्स थे, तो फ्लोर वाइज वो हैंगिंग केबल जलते हुए एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, इस तरह से भी फायर स्प्रेड होती रही. अब हम लोगों ने जैसा बोला कि चारों साइड से हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे, इतनी ब्रांचेस लगाए थे, 3-3, 4-4, लेकिन फिर भी कंट्रोल होना मुश्किल था, क्योंकि आग इस तरह से थी वो कि जब हमारा जो प्रैक्टिकली हमने जब देखा वहाँ पे 4th फ्लोर पे, तो टेम्परेचर जब हमने काउंट किया तो 1200 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस था. बताइए 1200 डिग्री सेल्सियस में आदमी काम कर सकता है? और वेंटिलेशन सबसे मेन था कि वेंटिलेशन ब्लॉक हो चुका था कम्प्लीटली. हम लोगों को सांसें लेने के, हमारे तो BS8 वगैरह सब लेकर गए थे, लेकिन विजिबिलिटी कम हो गई थी. टेम्परेचर इतना था कि आदमी खड़े भी नहीं रह सकता था. फिर भी टीम कंटिन्यूसली लगी हुई थी, और वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से जो स्मोक ऊपर जाता है, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, ऊपर जाने के बाद जब उसको कहीं पे जगह नहीं मिलती तो रिवर्स बैक मारता है. दूसरा होता है ऐसा कि जहाँ पे ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत भी ये मिला तो फायर बैकवर्ड मारती है. तो इस कंडीशन में जब ये हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे तो वेंटिलेशन जितना भी था तो आपके जितने भी शॉप्स थे, शॉप्स पूरे ब्लॉक थे. शटर मैंने बताया कि शटर थे, 3-3 लॉक लगे हुए. अब पानी मारे तो मारे कैसा, टेम्परेचर इतना है. तो हमने उसके बाद में हमने गैस कटर्स और इन सब को कॉल किया,
वेल्डर कटर को कॉल किया, उसके बाद में दरवाजे तो हम लोग हमारे तरीके से ही तोड़ रहे थे, लेकिन दरवाजे तोड़ने में भी समय लगता है। हमारे पास सर्कुलर सॉ था, सर्कुलर सॉ से हम लोग कटिंग करना चालू था। जब हमको लगा कि उससे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हमने वहाँ गैस कटर को टीम को बुलाया और एसएमसी की जो टीम आई तो फिर उन्होंने एक एक शॉप्स के गैस कटर से दरवाजे का ये शटर काटना चालू किया और उसके बाद में हम लोग पानी मार रहे थे। टेम्परेचर इतना था कि आप वहाँ पे शटर के बाजू में भी खड़े नहीं रह सकते थे और वेंटिलेशन की वजह से हाईली डेंस स्मोक था, क्योंकि जब कोई भी चीज़ जलती है तो अगर कंप्लीट जल गई तो उसमें अलग अलग फ्यूम्स रहते हैं, लेकिन अगर इनकम्प्लीट बर्न रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्रेन को डेड करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर BSA रहने के बावजूद भी हमारे BSA भी जल गए वहाँ कई सामान हमको ऐसी कंडीशन है कि एकदम रिवर्स फ्लो हुआ तो हमको सामान भी छोड़ना पड़ा, हमारा भी बहुत लॉस हुआ। तो इस तरह से फायर फाइटिंग करते समय हम लोग वही बोलते हैं कि वेंटिलेशन आपका प्रॉपर रखो। जैसा बताया कि विंडो को पूरा पैक कर देते हैं, उसमें ग्लास थे, बाहर से पानी मारने जाओ तो पानी अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएंगे उसके बाद में ही ग्लास टूटेंगे। ग्लास डोर से जब तक हम लोग पूरा हमको एस्केप के लिए या एंट्री के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था तो फायर फाइटिंग करना मुश्किल चल रहा था। इसीलिए बताया जाता है कि जब भी आपकी जितनी भी शॉप्स है, अभी तो बता दिया कि एक्सटिंग्विशर्स आपको लगाना ही है, ABC टाइप के सभी के पास एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे फायर फाइटिंग आप अपने तरीके से कर सकें। हम लोग बार बार बोलते हैं कि हर 6 महीने में ट्रेनिंग होना चाहिए। लकीली इतना अच्छा रहा कि उसका ट्रेनिंग हो चुका था, बट मॉर्निंग का समय था तो समय नहीं मिल पाया, स्टाफ नहीं था। तो इसीलिए दूसरा भी पॉइंट इन्होंने बताया कि फायर अलार्म स्मोक डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम होना चाहिए। वो अगर अपडेटेड रहा तो आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि फायर का जो कॉल हुआ वो लेट हुआ है, क्योंकि 3 फ्लोर पे फायर स्प्रेड होना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत समय लगता है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो रूम्स थे, जितने भी शॉप्स थे, वहाँ इतना फायर लोड था उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल हो गया। जगह ही नहीं थी, यानी रूम पूरे आधे से ज़्यादा भरे हुए, कई रूम तो पूरे भरे हुए थे। दूसरा है कि मेज़ानिन फ्लोर आप जो बनाते हैं ऊपर में, वो मेज़ानिन फ्लोर पे जाने के लिए जो लैडर इस्तेमाल की जाती है छोटी छोटी, वो भी लकड़ी की थी। टोटल आपका लकड़ी का फर्नीचर और जो मटेरियल वहाँ बर्न हुआ वो पॉलिस्टर की साड़ियाँ थी, टेरिकॉट की साड़ियाँ थी, बिल्कुल वो हाईली फ्लेमेबल है। उसको आग बुझाने जाओ तो वो कैसा एक टेम्परेचर पे आने के बाद मेल्ट होना चालू हो जाता है, फिर मेल्ट होने के बाद फिर जलते रहता है, वो जिस तरह से डामर जलता है, बराबर। उसको बुझाने के लिए समय लगता है। अगर वही जगह कॉटन का रहा तो जल्दी बुझ जाता है, लेकिन ये पॉलिस्टर होने की वजह से समय ज़्यादा लगा, क्योंकि वो मेल्ट होता था, हम पानी मारते थे फिर भी वो बुझता था। दूसरी बात, इतना टेम्परेचर रहता कि पानी का जो जेड जाता है वो भी स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी पानी भी वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, ये भी एक बात होती है। उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी टीम जो है एकदम नज़दीक जाके फायर फाइटिंग करती है, बहुत रिस्क में फायर फाइटिंग। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि फायर वाले बाहर से देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम अंदर थी। हम लोग फिर 2-2 लोग, जिसको अगर तकलीफ हो रही तो उसको थोड़ा बाहर बुलाते थे, फिर हम लोग दूसरी टीम को भी भेजते थे, क्योंकि मजाक नहीं है, 48 घंटे फायर फाइटिंग हुई है। 38 हावर्स में उस फायर को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया गया था। उसके बाद में जब शटर्स काट के हम लोगों ने जब देखा तो अंदर में भी कहीं ना कहीं कुछ जल रहा था, वो तो तीसरे दिन तक हमें पता चला। और कुछ शॉप्स ऐसे बना दिए गए थे कि ऊपर में जो अपना पैराफिट वॉल होता है उसके वहाँ भी शॉप्स बने हुए थे, पूरी तरह से टेम्परेरी स्ट्रक्चर के जैसे और वहाँ उस वजह से वहाँ पे पहुँचना ही मुश्किल था। हम लोग बाहर से, आपने देखा होगा कि बाहर से शटर ऊपर में पानी मारा जा रहा था, क्योंकि ऊपर का जो भाग था तो जो भी टीन की शीट्स थी वो मेल्ट हो चुकी थी, पूरे पत्रा की जो शीट थी वो मेल्ट हो गई थी और हम लोग ऊपर से पानी डाल रहे थे, क्योंकि कई जगह पे हमें जाने के लिए अप्रोच नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप बिल्डिंग का डिज़ाइन करो तो प्रॉपर आपका स्टेयरकेस होना चाहिए, उसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अब छोटी छोटी स्टेयरकेस थी, क्योंकि ये बिल्डिंग बनी हुई थी 91 में। उस समय के लॉज और अभी के लॉज में बहुत फर्क है। अभी हम लोग जो भी बोलते हैं कि कोई भी बिल्डिंग का जब इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो एज पर NBC 2016 एंड GDCR के रूल को फॉलो करो। पर लोग क्या बोलते हैं, एक शॉप थोड़ा ज़्यादा निकल जाए तो उसमें कमतरता करने की कोशिश कर दे, स्टेयरकेस को छोटा कर देंगे, पैसेज को छोटा कर देंगे। गाड़ी के मूवमेंट के लिए हमको दिक्कत आ रही थी, शटर्स बना दिए, कहीं पत्रे के शेड बना दिए ताकि गाड़ी सामने ना जा सके। तो इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब फायर लगती है तो ऐसे समय में हम लोगों को फायर फाइटिंग करने के लिए भी दिक्कतें आती है और वो नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको फायर प्रिवेंटिव जो मेजर्स है वो प्रॉपर रखना चाहिए। बाकी तो इलेक्ट्रिकल का इन्होंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रिकल अगर जो भी केबलिंग करते हो, जो भी वायरिंग्स है, वो एज़ पर स्टैंडर्ड होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से सर्टिफाइड होनी चाहिए।
क्योंकि लोड की तो बात आती है, हम लोग लगाते हैं 4 बल्ब लगाने के लिए और लगा देते हैं 10। उसके साथ साथ डेकोरेटिव मटेरियल भी हम लोग यूज़ करते हैं। डेकोरेटिव मटेरियल जितना भी आता है सारा फ्लेमेबल होता है। ये सिर्फ मैं शॉप्स के लिए नहीं, तो हमारे बाकी के जो घर भी है उसके लिए भी करते हैं। और जितना भी फ्लेमेबल मटेरियल हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे तो वो आने वाली आग के लिए खतरा पैदा करेगा। तो ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो एज़ पर स्टैंडर्ड और सर्टिफाइड कंसल्टेंट के थ्रू ही लगाइए। क्योंकि अभी तो जो हो गया सो हो गया, उसके बाद में अगर फ्यूचर में हमको अगर सिटी को डेवलप करना है, हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जितना इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में सूरत ही एक ऐसी सिटी है जो फास्ट डेवलपिंग सिटी में काउंट किया जाता है। और टेक्सटाइल हब की बात करेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एंड डायमंड हब है। जब इतना हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उस प्रोग्रेस के साथ साथ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमको भी करना चाहिए ताकि उसको हम लोग फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकें। पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए मैक्सिमम हम लोग रिस्क को अपने सर पे ले लेते हैं और वही रिस्क हमें बाद में खतरा पैदा कर देती है। तो फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोगों ने वो देखना है कि हमें जो भी सिस्टम्स अभी बताया गया है, डूंगरा जी साहब ने बताया कि हमें क्या क्या करना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले ही आपका समय बहुत हो चुका है, बराबर। तो फायर प्रिवेंशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी सिस्टम आप इंस्टॉल करके एज़ पर स्टैंडर्ड और प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू कीजिए। होजरिल की बात किया, होजरिल लगाना है, पंप जैसा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर चुकी है कि पंप का प्रेशर ही नहीं पहुँचता। वाटर कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं, टैंक होना चाहिए, कितना कैपेसिटी का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ फायर लोड कितना रहेगा, एरिया कितना है, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। पर ऑक्यूपायर क्या करता है, भाई इतना बड़ा टैंक बनाने की क्या ज़रूरत है, कब ज़रूरत पड़ने वाली है, बराबर। पंप की कैपेसिटी इतनी क्यों लगाना है, एक छोटा पंप लगा दिए इलेक्ट्रिकल का तो चल जाएगा। डीजल पंप की तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास स्टैंड बाय हमारे पास लगे हुए हैं। वो लोग बोलते कि हमारे पास पोर्टेबल है जनरेटर, उससे कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जब ऐसी आग लगती है तो सारे आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जल के राख हो जाते हैं। उस समय में ये डीजल पंप ही काम आता है। इसीलिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है कि आपका डीजल पंप प्रॉपर कैपेसिटी का लगा हुआ होना चाहिए ताकि आपकी जितनी हाइट है वहाँ मिनिमम 3.5 kg प्रेशर पहुँचना ही चाहिए। इसीलिए हाइड्रोलिक कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी सिस्टम आप इंस्टॉल करो तो सर्टिफाइड इंजीनियर से या जो भी सर्टिफाइड कंसल्टेंट है उसी के थ्रू लगवाइए। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि पैसे बचाने के लिए आपको बता देंगे कि भाई कम रेट में कर देता हूँ, ऐसा करना, ये लगाने की ज़रूरत नहीं, वो नहीं है। लेकिन जब हमें एनओसी इशू होती है तो उस समय हम लोग बोलते हैं तो बहुत नहीं बोलते, उसने बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है एज़ पर एनबीसी और जीडीसीआर के हिसाब से हमने बोला कि वो फॉलो होना ही चाहिए, क्योंकि आप रिस्क में खेल रहे हैं। जितने भी शॉप्स में जो हम लोग पहले ही बताया कि मैंने पॉलिस्टर मटेरियल जितना भी रखा है, जो भी शॉप्स है, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ भी ये सब चीज़ें लगाई जाती है, तो आपको रिस्क कितनी है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की बात की है तो प्रेशर कहाँ तक कितना मिलना चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेशन होना चाहिए। बहुत सारे इंजीनियर्स को ये पता नहीं होता कि पाइप कितने साइज़ का लगाना है। बहुत नोज़ल तो लगा देते हैं, जैसा इस रूम में अभी लगा दिए 2 4 नोज़ल, लेकिन इसका इनलेट पाइप वो कितने साइज़ का है वही नहीं मालूम। और पैसे बचाने के लिए साइज़ को कंसिडर नहीं करते। तो इसमें क्या होता है कि फिर चारों नोज़ल को प्रॉपर पानी मिलना चाहिए। नहीं तो जब सिस्टम चालू कर दिया, पानी ही नहीं आ रहा, प्रेशर ही नहीं आ रहा, तो आपकी सिस्टम क्या काम करेगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलिक कैलकुलेशन सीट हमको उसके साथ में चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, फ्यूचर में अगर कभी भी ऐसा कुछ रहता तो हम लोग तो फ्री ऑफ एडवाइस देते ही है। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए आप फायर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हुए आपका सिस्टम जो है उसको अपडेट करवाइए। अभी वो वहाँ के अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इतना हीट था, मैंने तो बताया कि 1200 से जब हमने इनिशियल स्टेज पे देखा तो 1200 था, उसके बाद भी उसका कितना टेम्परेचर आगे तक बढ़ते गया, क्योंकि अंदर के बीम्स वगैरह सारे बेंड हो चुके हैं, पूरा बेंड है। और 4th फ्लोर तो पूरा ही यानी अनयूजेबल है। इसीलिए अभी कहा गया है कि उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता तब तक हम लोग एंट्री भी नहीं दे सकते किसी को। बहुत लोगों को ऐसा था उस समय कि नहीं हमें एंट्री नहीं दे रहे फायर वाले, हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है। लेकिन आप बताइए कि आपका मटेरियल तो जल गया, लेकिन आपकी लाइफ हम लोग डेंजर में नहीं डाल सकते थे अगर आप वहाँ पहुँच गए। क्योंकि जब हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे उसी समय वहाँ से ऊपर से स्लैब के कुछ टुकड़े गिरना चालू हो गए थे, स्लैब के टुकड़े गिर रहे थे जिस समय हम फायर फाइटिंग कर रहे थे। अगर उस समय आपको एंट्री देते और एक आधा स्लैब गिर जाता तो क्या है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए फायर फाइटिंग वाले जब काम करते हैं फायर स्टाफ तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको लोग उंगली उठाते रहते कि हमको जाने नहीं दे रहे, हमारा मटेरियल जल रहा है लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या है कि आपकी सेफ्टी के लिए हम लोग बैठे हैं।
आपकी जानो माल की सुरक्षा करना, यही सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मोटो है। तो उस बात को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए पूरी तरह आपकी सुरक्षा, और हम लोग पूरा ध्यान रखते थे कि वहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दुकानें बचा सके, हम लोग बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमारा स्टाफ कंटिन्यू फायर फाइटिंग कर रहा था, वो कोई रेस्ट नहीं ले रहा था। कई लोगों ने तो दो दिन तक खाना तक नहीं खाया। लोग जब उनको ला के देते थे तो बोलते थे पहले फायर फाइटिंग कर ले, क्योंकि थोड़ा भी अगर हम लोग डिले करते तो वो आग और बढ़ सकती थी। तो इस बात को आप भी समझिए और इसके आगे हमको भी सपोर्ट कीजिए, फायर सर्विस को, ठीक है। और आपको जितना भी बताया गया कि फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के लिए जो जो सिस्टम्स इंस्टॉल करना है वो प्रॉपर तरीके से आप कीजिए, ताकि आगे में ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो। और हो तो इनिशियल स्टेज पे ही आप कॉल कर दीजिए। पहले तो आपके स्टाफ को मालूम होना चाहिए कि इनिशियल स्टेज पे अगर कोई भी आग लगती है तो ABC टाइप के जो एक्सटिंग्विशर्स बताए, वो एक्सटिंग्विशर से आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद में भी नहीं होता तो आपको वहाँ होजरी लगी हुई है, वो 24/7 हावर्स कंटिन्यूस रनिंग में होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग NOC के लिए आते तो उस समय चालू कर देते, बाद में बोलते कि बंद कर दिए। स्मोक डिटेक्शन का भी हमने ऐसा देखा है कि स्मोक डिटेक्शन लोग क्या करते हैं कि कभी अलार्म बज जाता है अगरबत्ती वगैरह से, तो उसको बंद करके रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम चालू रहेगा तो ही आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम को कंटिन्यूस रनिंग में होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और बाकी का जहाँ पे आग लगने के चांसेस है उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा सामने अपने मुंह से नहीं बोला वो मैं बताना चाहता हूँ। 26 तारीख को करीबन 3 बजे के आसपास ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं हम, मैं भी 3, 4 और 5 बार भी साहब के साथ में ही था। साहब थे, चीफ फायर ऑफिसर थे, ये सब और जगह पे थे। ये सब है हरीश गाड़ी संभाल, इनको पानी का जिम्मेदारी, पानी सप्लाई कंटिन्यू होना चाहिए, जिम्मेदारी यही पे थी। तीसरे महीने पे खाना नहीं खाया था, सबका उपवास था। केला मंगाया था सबके, लेकिन ऊपर तक पहुंचा ही नहीं था। बोला मैंने साहब को बोला चलो ठीक है मैं इंतजाम करके आता हूँ। मैं भी भूखा था और इतनी गर्मी थी, गर्मी से एनर्जी नहीं रहती, कुछ चाहिए। उसी टाइम पे एक और घूम के ये मतलब धुआं का गोला आया, मतलब बराबर चारों चार ट्रैप हो चुके थे। अगर 1 मिनट गलती हुई होती तो एक भी नहीं बचता, एक भी नहीं बचता। ये कंडीशन थी। उस कंडीशन में इन लोगों का मुंह देखो, फोटो है, मुंह देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कौन है, ये सब है। इस कंडीशन में इन लोगों ने कहा कि इनके लिए एक ताली हो जाएगी। पर मेरा तो कोई रोल ही नहीं था, नहीं मैं कोई ऑनर हूँ, नहीं मैं कोई फायर का साहब हूँ। तो अभी मैंने 18 घंटे इन लोगों के साथ काम किया। हम लोग प्लान कर रहे थे कि इस तरह से यहाँ से 2 आदमी भेजना है, वो करना है, तो एकदम से धुआं आ गया। क्यों आया वो धुआं? इसलिए वो क्यों आया इतना धुआं? क्योंकि आपका जो वेंटिलेशन था OTS ऊपर से पूरा पतरे से पैक कर दिया, तो धुआं जब ऊपर गया और ऊपर से उसका रास्ता निकला तो रिवर्स आ गया। और वो रिवर्स एकदम से आया, तो हमको किस रूट से जाए वो भी नहीं दिख रहा। થોડું દુઃખ થાય છે કે ભાઈ આજે તો 100 કરતા વધારે માણસ હોવો જોઈએ, એવી ટેક્સટાઇલ માર્કેટ वाला જોવો જોઈએ। क्वेश्चन आंसर में एक तो सबसे ज़्यादा मैं दुकानों की तरफ से एक बात पूछना चाहता हूँ कि दुकान वाले क्या करते हैं कि बिल्डिंग बनी हुई रहती है, उसके पास से दुकान लेते हैं। अब वहाँ पे इंटरनल मैं दुकान लिया, मुझे लोड बढ़ाना है तो मैं अपने हिसाब से बढ़ाऊंगा, लेकिन अंदर जो बिल्डिंग वाले ने जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिकल जो केबल है वो उसकी क्वालिटी और वो अगर सही नहीं है तो उसको क्या करें? क्योंकि बिल्डिंग तो उसने बनाया है, उसने सब स्टैंडर्ड डाल दिया, तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या करें ये लोग? तो आप जहाँ से खरीदते हो तो ये डिमांड आपको उनसे करनी चाहिए कि हमें यही स्टैंडर्ड चाहिए। आज की बात है, हम लोग अगर कोई भी फ्लैट भी बुक करते हैं, बराबर, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कौन सी लगी हुई है, देखते हैं ना हम लोग। लेकिन जो बन गई है ऑलरेडी तो उसको भी रिप्लेस करवा सकते हैं ना, अगर वो अगर सब स्टैंडर्ड है तो आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरी सेफ्टी के लिए ये प्रॉपर चाहिए। वो उसमें क्या होता है कि भाई वो सेफ्टी के हिसाब से बताता सब कुछ है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है और वो जो दूसरे लोग है इंटरनल, वो सब स्टैंडर्ड डाल देते हैं प्रोडक्ट को, तो वही वो चेक करना चाहिए सर। ये वो सब मेजर ये इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा इश्यू है। नहीं पर सिंपल मैं तुमने पहले की तो प्रॉपर्टी
उससे मॉनिटर बिल्डिंग मैंने बना ली, मैंने तो दे दिया, मैंने सब कुछ सही दिया है, लेकिन सही दिया है कि नहीं दिया है वो चेक वो दुकान वाला कैसे करेगा? तो फिर क्योंकि मैं तो खाली ओरली बता दिया है, मैंने जो बोला है स्टैंडर्ड वही है, लेकिन बिल्डिंग में उसने सब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर, मैंने खुद बिल्डर हूँ, मैंने बोल दिया वो सही लगाया, लेकिन मेरे अंडर में जो आदमी है वो अंदर पैसा खा के वो चीला चालू काम करवा लेता है, तो वो स्टैंडर्ड को कैसे? इसीलिए हमने बोला कि जैसा भी जो भी इलेक्ट्रिकल आप इंस्पेक्टर जो भी होगा सर्टिफाइड, उससे आप ऑडिट करवाइए, और उसके ऑडिट के बाद में अगर वहाँ पे लेकुनास आपको लगता है कि सब स्टैंडर्ड्स है, तो आप उस जिससे भी आपने खरीदा है उसको आप एक लेटर दीजिए कि आपने जो बोला था उस हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, तो इसको रिप्लेस करके दिया जाए। अदरवाइज मैं खुद करवाता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं अगर खुद करवाता हूँ तो आपको उतना डिडक्शन या रिबेट उसको देना पड़ेगा। और कोई राइट फ्रॉम मीटर मीटर का वायरिंग आपने नવું કરાવવું જોઈએ। दूसरा केबल का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो बहुत बार क्या होता है बेयर वायर हम लोग यूज करते हैं, लूज कनेक्शन रहता है, हम लोग तो बार बार बोलते हैं 3 पिन टॉप प्लग का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि जितना लूज कनेक्शन रहेगा उतना ज्यादा फायर के चांसेस बन जाते हैं। पीएलसी पे लगा हुआ है कि नहीं ये सब चेक करना, तो ये सारी चीजें जो है हम जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको बोलना है, और अपने लेने के बाद अगर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से हम लोग अगर ऑडिट करवा दे तो हम श्योर हो जाएंगे कि इसमें कुछ गलती है या नहीं, क्योंकि ऑडिटर हमको बता देगा कि यहाँ क्या क्या फॉल्ट्स है, और उस फॉल्ट को आपको रेक्टिफाई करना है। अगर उस रेक्टिफाई करते समय अगर वो बिल्डर मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको खुद की प्रॉपर्टी खुद तो करना ही करना है। दूसरा एक सवाल था, अपना जो ओटीएस इलेक्ट्रिक डक्ट होता है, उसमें पैसिव फायर सब करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? ओटीएस में अगर करवाते तो बहुत अच्छी बात है, जितना भी इलेक्ट्रिकल डक्ट है तो उसको फायर रिटार्डेंट कोटिंग आप करवा सकते हैं। मैं इसके लिए पूछा कि अभी आपने बोला कि ऊपर से स्मोक नहीं जा रहा था, तो उससे स्मोक रुक जाएगा, मतलब ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा? नहीं, तो वो तो केबल को कोटिंग होगा ना, पैसिव फायर प्रोटेक्शन होगा नहीं, केबल या फिर कंटिन्यू वायरिंग पूरा ओटीएस को पैक कर देगा। ओटीएस को पैक नहीं करना है, ओटीएस को पैक नहीं करना, सिर्फ केबल को कोटिंग करना है फायर स्टोर। ये प्रॉब्लम यही है, ओटीएस को पैक नहीं करना। ओटीएस को पैक नहीं करना, ओटीएस पैक था, और ओटीएस पैक होने की वजह से स्मोक को वेंटिलेशन के लिए उसका जगह कोई नहीं। कोड है पैसिव फायर स्टॉप का, कुछ कोड फॉलो करना है सब? बिल्कुल, बहुत सारे कोड्स हैं। नहीं, अभी जो इंडियन में सूरत में जो यूज करना है हमको, ऐसा कोई कोड बना है कंपलसरी, ऐसा कुछ ये करना है? ऐसा तो अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन दूसरा कि हर एक इंडस्ट्रीज और रेसिडेंस के ऊपर जो स्ट्रक्चर पीवी स्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं और उसकी वजह से जो इंसिडेंट बनते हैं, तो उसके लिए क्या रीजन है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शेड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस समय बिल्डिंग सैंक्शन होती है तो उस प्लान अप्रूवल में होता ही नहीं है। बराबर। उसके बाद में जब एनओसी इश्यू हो जाती है उसके बाद में क्या करते हैं लोग अपने सुविधा के अनुसार उसमें चेंजेस करवाते हैं, और बात आ जाती है कि फायर फाइटिंग ने एनओसी देते समय क्यों नहीं देता, लेकिन जिस समय एनओसी इश्यू होती है उस समय वो सब सिस्टम नहीं होता। अभी यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे शिव शक्ति के बारे में बात करेंगे तो जिस समय एनओसी दी गई है उस समय उसमें ओटीएस ओपन, तो कोई भी टेम्पररी स्ट्रक्चर ऊपर नहीं बना हुआ था, लेकिन उसके बाद में बना दिया जाता है। तो ये सारी चीजों का हमको अवॉइड करना है। एक तो इंडस्ट्री में राउंड डोम नहीं बनाओ, क्योंकि અત્યારે પેલી કોસ્ટ કંટ્રોલ માટે રાઉન્ડ ડોમ બનાવી છે, રાઉન્ડ ડોમ બનાવશો તો સ્પ્રિંકલર ક્યાં કેવી રીતે ગોઠવશો? सर अभी कनेक्टिंग टू द सेम पॉइंट, शिव शक्ति का जो स्ट्रक्चर बना है आप सेम उसके सामने अभिषेक देख लो, उसके बाद में बोधवाला देख लो, उसके बाद में राधे मार्केट देख लो, ऑल आर एकदम कंजेस्टेड है, और इससे ज्यादा तो सामने पाकिस्तान मार्केट है। अगर आप जगदम्बा देख लो, जयलक्ष्मी देख लो, देख लो, तो वहाँ पे क्यों हम हमारी तरफ से एक इनिशिएट नहीं करें कि आप इसी स्ट्रक्चर के अंदर वेंटिलेशन पॉइंट्स ओपन कीजिए? तो हम लोगों ने अभी उन सबका लिस्टिंग चालू कर दिया है, सबको नोटिस है कि ये जो भी है हमने जोन को नोटिस दे दिया है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी टेम्पररी स्ट्रक्चर आता है ये जोन के अंदर से अप्रूव होता है, तो जोन को नोटिस जा चुका है कि जो भी ऐसी बिल्डिंग्स है तो उनको नोटिस आएगा कि वो सब बिल्डिंग को શિવશક્તિ માર્કેટમાં તો ફાયરની ગાડી પહોંચી શકે એટલી જગ્યા હતી, બાકી જગ્યા તો અમારી તિરુપતિ માર્કેટ કે જગદંબા માર્કેટમાં ગાડી નહીં જાય, એટલે અંદર જો કોઈની પણ દુકાનો છે તો એમણે એનું પ્રિવેન્શન પહેલા કરવું જ પડશે। જો ફાયર થાય તો કંટ્રોલ નહીં થાય। આ બહુ એકદમ ક્લિયર સ્પષ્ટ ઓપિનિયન છે। जो लाइन में जयलक्ष्मी हो चाहे जगदम्बा हो, लाइन में कनेक्टिंग बेसमेंट में भी दुकान आती थी सर, बेसमेंट में तो गोडाउन अलाउड ही नहीं है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज आप बेसमेंट में नहीं कर सकते। बेसमेंट सिर्फ होता है कि आपका स्टॉक मटेरियल जो है वो थोड़ा नॉन फ्लेमेबल स्टॉक मटेरियल, वो भी 25% ही आप रख सकते हैं, कि पूरा हमको इतना बड़ा रूम दिया था पूरा रूम में
ऑक्यूपाई करूँ, ऐसा नहीं होता। इस रूम की कैपेसिटी के 25% ही, वो भी नॉन फ्लेमेबल रूम है, फ्लेमेबल मटेरियल नहीं रख सकता और कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है बेसमेंट में। बट अगर यहाँ की बात की जाए तो शिव शक्ति में भी बेसमेंट में शॉप्स चल रहे थे हमने अभिषेक और सभी मार्केट में। हाँ, तो ये पहले का है ऐसा, इसमें कैसा कि ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन था मैं बता रहा हूं बाहर में प्रिवेंशन ઉપર એટલા માટે મેં બહાર મૂક્યું તમે પ્રિવેન્ટ કરો. આ બધા નિયમો છે ને હમણાં 2013 પછી બનાવેલા. પહેલા આવું વસ્તુ નહીં હતું, આટલું બધું રિસ્ક બી નહીં હતું ને આવા ઇન્સિડન્ટ બી નહીં બનતા હતા. પણ પોપ્યુલેશન વધતું જાય છે, જમીનની એ છે, રિક્વાયરમેન્ટ વધતી જાય છે. પહેલા આપણે સિંગલ પંખાથી ચાલતા, હવે તો રૂમે રૂમે એસી છે એટલે તમારું ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ઝપ્શન ડેફિનેટ. બીજું આપણું ઇન્ડિયન કલ્ચર એવું છે કે આપણે ક્વોલિટીમાં નથી માનતા, ક્વોન્ટિટીમાં માનીએ. સેફટીની અંદર આપણું ફોકસ હોતું નથી ફોરેન. આપણે વાત ફોરેનની કરવાની, પણ પરિસ્થિતિ કેવી કે જૂનું એમ ચાલે બે વસ્તુ ચલાવી લે એમાં શું થવાનું એમ. આ એટીટ્યુડ છે આપણું. આપણે કોઈ દિવસ ફાયર ઓડિટ નથી કરાવતા, મેન્ડેટરી છે, પણ એ આપણી એની શું જરૂર છે, ક્યાં લાગે છે એમ. एक्चुअली हर कॉम्प्लेक्स को 6 महीने का फायर ऑडिट करवाना है। मॉकड्रिल हर 6 मैंडेटरी महीने, रिक्वायरमेंट क्या है? एवरी 6 मंथ या 1 ईयर? एवरी 6 मंथ, मॉकड्रिल हर 6 महीने में होनी है। એની અંદર આપણો જે ઇલેક્ટ્રિકલ સાહેબ ક્વેશ્ચન્સ કરે, સર્ટિફિકેશન મસ્ટ છે. આપણે કોઈ બી વસ્તુ લઈએ સર્ટિફિકેશન દેખતા જ નથી કે ભાઈ આ એક્ઝામ્પલ તરીકે સાહેબને કીધું, સાહેબ લગાવી નથી, સાહેબ લગાવી લીધું. તમારો રોલ કોઈ બનતો નથી કે એને શું લગાવ્યું, એઝ પર આઈએસ છે, એમડીસી સાહેબ કે છે, નોર્મ્સ પ્રમાણે ચેક નહીં, એવું નહીં કીધું એટલે લગાવી દીધું. એમ મહેશભાઈ, વધુ પડતો વિશ્વાસ. હવે ઘણો સમય થઈ ગયો મને જોવું એટલે આપણે ફોર્માલિટી મહેશભાઈ જોશીને વિનંતી કરું વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે. ઉપસ્થિત ભાઈ વિડીયો અહીંયા નિવાણી સાહેબ તેમજ પ્રકાશભાઈ, પરેશભાઈ, ચેતનભાઈ, હરીશભાઈ પત્રના શેડની નીચે તેમજ અલગ અલગ કંપનીમાંથી ઉપસ્થિત અહીંયા સૌ પ્રોફેશનલ્સ મિત્રો. આજે જે આપણને નિવાણી સાહેબ અને પ્રકાશભાઈએ જે પ્રમાણે જે ફાયર એન્ડ સેફ્ટીના સેમિનારમાં જે આપણને ગાઈડન્સ આપ્યું છે, આપણને સારું ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ એમણે આપ્યું છે અને શું પ્રિકોશન લેવા આફ્ટર એન્ડ બિફોર. પહેલાં તો આપણે એવું ઈચ્છીએ કે આવી કોઈ ઘટના ક્યાંય બને નહીં, પણ એ સિવાય આપણે જે રીતે આપણા રૂટીન લાઈફમાં આપણે અવેર લાવીશું, આપણા બિઝનેસમાં ફાયર એન્ડ સેફ્ટીને લઈને અવેરનેસ લાવીશું, એ પ્રમાણે જે આપણને સૂચન મળ્યા છે અને અમુક સૂચનો જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું પણ એમણે કીધું છે, આપણે કાલથી આપણે એના પર ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ કરીએ. એ સરસ આપણને ગાઈડન્સ મળ્યું છે. બદલ આપણે તમામને ખૂબ ખૂબ અહીંયા આપ સૌ ઉપસ્થિત પણ રહ્યા છો, સારી રીતે સાંભળ્યું પણ છે. એ બધા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની સેફ્ટી અને સિક્યુરિટી કમિટી તરફથી સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ધન્યવાદ.